Okay, so here we go. Welcome to the first in-depth session of the Analyst Stack. And I'm surprised for those who have not come to this Zoom session because in order to differentiate between those who come to the Zoom versus those who are on YouTube later, I'll be rewarding with the Zoom participants. I've thought about the same. तो जूम पार्टिसिपेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा एज कंपेयर टू जो लोग केवल यूट्यूब पे देखने वाले हैं because they have shown the sincerity. मिलना भी चाहिए, isn't it? So before I begin, on the Q&A tab, you can keep on typing your doubts, but keep it limited, please. Believe me, let's behave like professionals. So on the Q&A tab, you can type your doubts. Obviously, I think the session would be so exhaustive that I may not get the time to answer those doubts or to address them at the end of the session. But I will have the doubts with me and मैं उसको आंसर करूंगा सेशन के बाद यानी कल जो डाउट्स मेरे को सिस्टमैटिकली क्यूमुलेट करके लगे कि हाँ कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 if some of the doubts are really good I will also post them on telegram channels or I have the data with you. I'll share with you all of you कि this was the doubt raised and this was a wonderful doubt. ठीक है ना? But don't block the Q&A with how are you sir, you are looking beautiful. Okay, I know I'm not looking beautiful still. Okay, so don't fill it up with that. Okay, now once again one more thing before I start the session. सेशन जो है उसमें 3 टाइप के ऑडियंस है. ऑडियंस नंबर 1 प्रोफेशनल्स, दोज हु आर इनटू द इंडस्ट्री, दोज हु नो financial modeling, how to do some valuation with the help of price multiples, some sort of DCF. They have some idea of the industry, the markets, and they know their gaps. They know their skills very, very well. Okay, when I talk about deep research, where are they lacking? Category 2 is the student community, highly energetic, who are wanting to explore into this field, make a great career for themselves, doing certification programs like CFA, FRM, CA, or other programs, and who are really, really eager to understand this entire analytical skills. Category 3 are those students or those people who are attending the program कि चल देखते हैं कैसा है. ओके, क्या बोल रहे थे एनालिस्ट टैग, चल देख के आते हैं, मजा आएगा. The third category of audience will leave this particular session in 10 minutes time. Believe me, 10 मिनट के ऊपर उन लोग को मजा आ नहीं पाएगा बिकॉज यहाँ मजा नहीं है, यहाँ डेप्थ है. तो आई कैन ईदर गिव यू मजा और आई कैन गिव यू डेप्थ. आई हैव डिसाइडेड टू गिव यू डेप्थ, नॉट द मजा. ठीक है, तो अल्टीमेटली कैटेगरी 1 एंड 2 बचेंगे और कैटेगरी 3 जो है लीव कर जाएंगे. फाइनली दिस पर्टिकुलर केस स्टडी on Indian Hotels, IHCL, is a case study of roughly 100 plus pages. Yes, I could not reduce it. 100 plus pages का case study है. And this is an art of perfection. This is a piece of perfection. ऐसा piece of perfection replicable आपको कहीं नहीं मिलेगा. I guarantee you will not find it anywhere, no matter wherever you search it around the globe. This has been prepared with such meticulous details. However, this has been prepared not to present to an investment community या investment committee के लिए नहीं बनाया गया. This has been prepared for audience who want to learn the process of investing. Understood? So when there is a teaching का focus, it becomes at times थोड़ा सा explanative कि जहां पे समझाना चाह रहे हैं, जहां पे कुछ रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, तो as compared to जो इन्वेस्टमेंट कमिटी को प्रेजेंटेशन देते हैं. तो दिस इज prepared for the purpose of learning the art and the science of deep research. Understood? So please remember these caveats. Also, 100 pages cover by cover, one by one, cover करना ना मेरा उद्देश्य है और ना इस प्रोग्राम का उद्देश्य है. To cover one by one. देखो slide 1, slide 2, slide 3. This is not the way it goes. I will give you a wonderful articulation of how crisis investing is done. यानी क्राइसिस सिचुएशंस में कैसे अपने विनर्स को ढूंढते हैं, उसका आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा. नाउ दोज हु विल जस्ट लिसन टू द सेशन, दे विल लेटर ऑन कमेंट, अच्छा सेशन था यार, मजा आया, मतलब अच्छा बताए सर. सब नहीं नहीं यार बोरिंग था, पता नहीं आधे घंटे बाद तो मेरे से बहुत ज्यादा वैसा लग रहा था. इट वॉज गुड, बिलीव मी, इट हैड ग्रेट इनसाइट्स.
For the other category, who will take the 100 pages ka this thing and who would deeply research the same, read the same, cover to cover, page by page, they are the ones who will actually go up. ठीक है? तो सबका आउटपुट लेवल, सबका आउटकम विल नॉट बी द सेम. इट विल डिपेंड अपॉन आप कितने सीरियसली इसके अंदर इनग्रॉस्ड होते हो. करेक्ट है? तो आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा. बिलीव मी, यू हैव टू लीड. आई कैन ओनली शो द पाथ. आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट द सेम. After all this gyan which has happened for 5 minutes, I think I should start. Okay, so I'm really sorry for the 5 minutes ka gyan which I have given. And here we start. Let me show you the PDF which has been prepared. Uska ek jhalak to dikha de. Okay. So here is that IHCL ka case study. Prepared as on Jan 2026. Okay, Jan 2026 में खड़े होके prepare किया गया है. The first criticism behind this case study is that it will be suffering from a hindsight bias. कोई भी अगर देखेगा ना तो बोलेगा सर आप बता रहे हैं कि मई 2020 में खड़े होके IHCL का क्या सिचुएशन था, पर Jan 26 में तो पता ही है ना उसके साथ क्या हुआ. तो इट इज सो इजी टू गिव ज्ञान. तो आई हैड सेड इन द लास्ट सेशन दैट अगर मैं पुराना स्टॉक लूंगा तो उस पर हाइंडसाइट बायस होगी. मैं आज का स्टॉक लूंगा PFC REC तो उस पर फोरसाइट बायस होगा. तो इन दैट केस द वे यू इंटरप्रेट आपका मन वैसे. मैंने कोशिश की है इस पूरे के पूरे राइटअप में, इस डिस्कशन में जो होगा कि वी हैव नो बायस एंड वी आर डिस्कसिंग थिंग्स which could be repeated because there is a framework which is being discussed. If you understand the meaning of the word framework, तो framework एक ऐसा चीज होता है जो आपका बन गया तो आप उस framework में फ्यूचर में भी फायदा उठा सकते हैं. ठीक है? तो in that case this is the table of content. You will find chapter 1 से chapter 11 तक किया हुआ है. chapter 1 से chapter 11. Okay, there are 11 chapters in which I have divided the entire discussion of IHCL. एंड जब मैं ये प्रेजेंटेशन आज आपको दूंगा तो आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज देयर फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 11. और आपको पूरा नहीं रीड करना है, कुछ कुछ पोर्शंस देखने हैं तो आप उस पोर्शन में जा सकते हैं. सबका सब हाइपर लिंक बनाया हुआ है. इट्स वेरी इजी टू मैन्यूवर अप एंड डाउन द सेम. ओके, लास्ट वाला चैप्टर इफ यू कैन सी इज रिजल्ट्स टू लर्न. ठीक है? रिजल्ट्स एंड लेसन्स, द रेप्लिकेबल फ्रेमवर्क, दैट्स द मेन स्टफ. ये रेप्लिकेबल है. दिस इज नॉट IHCL स्पेसिफिक, दिस इज रेप्लिकेबल. There will be some people, I am sure, at least 1% of the crowd who will be listening to this over here or on YouTube, who will use this to find multi-maggers and to mint money in future. Believe me, there are some who will do that, but very few, because it's a replicable framework. तो ये इतने सारे पेजेस का केस स्टडी है. चलिए इसको ओपन करते हैं. ओके, those of you who know me, they know very well that Sanjay sir is not a PPT person. तो मैं ज्यादा पावर पॉइंट स्लाइड यूज नहीं कर सकता हूं. मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरा फ्लो अच्छा नहीं आता है. तो वी विल गो टू द स्लाइड्स इन बिटवीन. इट इज मोस्टली फॉर यू टू डाइजेस्ट एंड टू एब्जॉर्ब एट योर टाइम. सुनिएगा प्लीज. क्राइसिस happens at different levels. It happens at the economy level. Two popular crises that all of us have witnessed is the subprime crisis of 2008-9 and then the COVID crisis of 2020. ये दोनों तो सबको ही पता है, whether you are Gen Z और Gen Alpha और whatever. ठीक है, सबको पता है 2008 का क्राइसिस एंड 2020 का कोविड क्राइसिस. ये तो इकोनॉमी वाइड हो गया. ठीक है? देन देयर आर सेक्टोरल क्राइसिस. सेक्टोरल, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ विच पर्टिकुलर सेक्टर सीम्स टू बी इन क्राइसिस? Right now, which particular sector seems to be in crisis? Yes, please. Which particular sector seems to be in crisis? Of course, I'm getting the replies. I'm getting the replies. Very good. IT sector. The IT sector seems to be in deep crisis, especially what has happened with Anthropic releasing the Claude Cowork and the Claude Code. I hope you're aware. And the Nifty IT index fell down the same day by around 7%. The same thing happened with global IT giants. So the IT sector seems to be in crisis. Of course, you can say that उतना भी deep नहीं है. ठीक है, crisis तो है ना. Okay, जहां पे there is existential question कि क्या Infosys, Wipro, ठीक है, TCS, इन कंपनीज का अब वो फ्यूचर, वो बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है क्या? There could be debates around it. You could have some view, but it's a question of having a very in-depth view rather than surface level view. ओके, तो क्राइसिस होता है इकोनॉमी के लेवल पे, होता है सेक्टर के लेवल पे, और क्राइसिस होता है एट द लेवल ऑफ कंपनीज. भर भर के क्राइसिस होता है कंपनी के लेवल पे. यू नो व्हाट इंडिगो वेंट थ्रू. ओके, इंडिगो का क्या हुआ था अभी वो आपको पता ही है.
तो दैट वाज अ वंडरफुल क्राइसिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग उसको बाई करना चाहिए था, दैट्स अ टॉक फॉर अनदर डे। इनफैक्ट मैंने वो इंक्लूड किया है। आज से 2 वीक बाद, आज से 2 वीक बाद, यानी नेक्स्ट वीक टू नेक्स्ट वीक इंडिगो का पूरा डिटेल डिस्कशन होगा। ओके, उसका जूम से, उसका जो जूम लिंक है वो आपसे सर्कुलेट हो जाएगा। यू कैन ज्वाइन द जूम लिंक। ऑफकोर्स जूम पार्टिसिपेंट्स को ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू यूट्यूब वाले को। यस, मेरा प्रेफरेंस है जूम वालों के साथ। ठीक है, तो आज से 1 वीक के बाद 2 वीक थर्सडे को ही मोस्ट प्रोबेबली वी विल कीप इंडिगो का डिस्कशन क्या हुआ था। ठीक है, तो क्राइसिस वाज देयर इन इंडिगो आल्सो। क्राइसिस पहले और भी याद कीजिए प्लीज, आई एम लुकिंग एट द Q&A टैब। क्राइसिस और किस कंपनी में हुआ था? कंपनी लेवल पे और कौन सा क्राइसिस आपको याद आ रहा है? कंपनी लेवल पे और कौन सा क्राइसिस याद आ रहा है? यस, तो पीपल आर राइटिंग वेरी वंडरफुल नेम्स, किस्सा सत्यम, अदानी एंटरप्राइजेस, सम हैज रिटन HDFC। छोटा मोटा क्राइसिस तो HDFC का हो रहा ही था। सम हैव रिटन पेटीएम, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, यस, वंडरफुल। सो इट इज प्रूवन टू यू दैट क्राइसिस या तो मैक्रो लेवल पे या सेक्टर लेवल पे या कंपनी लेवल पे होता रहता है। यू हैव टू अग्री। जब क्राइसिस होता है, दैट इज द अपॉर्चुनिटी जहां पे फंडामेंटल एनालिस्ट्स शुड बी मोस्ट अग्रेसिव। Because what is the basic of fundamental analysis? The basic theme of fundamental analysis is that markets are inefficient. Okay, they don't believe in EMH. Markets are inefficient. If you can use publicly available information with great level of depth, you will be able to find out mispriced securities, जिनका price is significantly below their intrinsic value. एंड वॉट यू हैव नोन टुडे वो बाजार फ्यूचर में जानेगा, एंड देर विल बी कन्वर्जेंस। तो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस टू प्रोड्यूस अल्फा देयर हैज टू बी मिस प्राइसिंग। और मिस प्राइसिंग सबसे ज्यादा कब होता है? क्राइसिस के टाइम पे। ये तो मानना पड़ेगा ना सब। मिस प्राइसिंग कब, सैनिटी कब लूज होता है मार्केट में? क्राइसिस के टाइम पे। और उस समय, ओके, इनफैक्ट जो लोग हेज फंड जानते हैं, तो यू वी हैव इवेंट ड्रिवन स्ट्रैटेजीज ऑन द माइक्रो फ्रंट। ओके, हम लोग बोलते हैं कांड। एंड वी हैव मैक्रो में अपॉर्चुनिस्टिक स्ट्रैटेजीज, ग्लोबल मैक्रो एंड मैनेज्ड फ्यूचर्स, इन केस किसी ने सुना हो CFA स्टूडेंट्स। बट अदरवाइज हेज फंड भी तो यही काम करते हैं। वो लोग क्राइसिस के टाइम पे दे एंटर द मार्केट। ओके, बिकॉज दे नो दैट यही टाइम है जहां पे अपने को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, वैसा अपॉर्चुनिटी अदरवाइज नहीं मिलेगा। नाउ द बिगेस्ट रिस्क विच आई एम रनिंग बाय टेकिंग दिस सेशन इज दैट इस पर्टिकुलर सेशन से सम स्टूडेंट्स, और स्पेशली जिनका एक्सपीरियंस मार्केट्स में नहीं है, दे विल फील सो इंचैंटेड दैट नेक्स्ट टाइम जब भी क्राइसिस होगा ना, दे विल फील लाइक यार अभी तो बाई करना चाहिए, संजय सर ने बोला था। संजय सर एकदम भी ये बात नहीं बोल रहे कि क्राइसिस में बाई करना चाहिए गिरे हुए को। फिर से, संजय सर इस सेशन में ये नहीं बोल रहे कि क्राइसिस में जो गिरा हुआ सेक्टर या गिरा हुआ स्टॉक है उसको बाई करना चाहिए। नो, संजय से ये बोल रहे हैं कि क्राइसिस में जो गिरी हुई चीजें हैं उनको कैसे अपने एक फ्रेमवर्क में फिट करते हैं, एंड लेट द फ्रेमवर्क एंड द प्रोसेस आंसर वेदर इट शुड बी बॉट और इट शुड नॉट बी बॉट। आई रिपीट वंस अगेन, आई एम नॉट टीचिंग क्राइसिस में गिरे हुए चीज को बाई करना चाहिए। नो, ओके, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स द बॉटम। आई एम टीचिंग यू अ फ्रेमवर्क जिससे क्राइसिस के टाइम पे यू कैन अप्लाई द फ्रेमवर्क and decide whether that particular sector or stock which is really fallen is worth buying at that time or not। ठीक है, ये कैवियट है, तो क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, कि क्राइसिस में बाई करने के लिए गिरे हुए चीजों को मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं एक फ्रेमवर्क सिखा रहा हूं जो रिपीटेबल है। ओके, नंबर 2, हैविंग सेड दैट, लेट्स रिमेंबर फेब मार्च 2020। आराम से, फेब मार्च 2020। तो दिसंबर एंड जनवरी में थोड़ा सा कोविड का सुनाई देना चालू कर दिया था कि यार ऐसा कुछ, ओके, डिजीज है जो फैल रहा है चाइना में वगैरह वगैरह। ठीक है, बट अपने वो सब नहीं सोच रहे थे कि इतना जल्दी इसका इतना वेलोसिटी हो जाएगा कि सच दैट यू नो दे विल बी ए कंप्लीट लॉकडाउन। आई थिंक फेब में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, एंड लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो रातों रात कंपनीज का रेवेन्यू गायब हो गया। खर्चे अभी भी है, देर आर कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट विच आर स्टिल देयर एंड रेवेन्यू इज गॉन। जस्ट थिंक अबाउट, लाइफ वाला पार्ट तो था ही जिस पे अपने फोकस कर रहे थे, बट लाइवलीहुड वाला पार्ट कितने जोर से हर्ट हुआ था ये सबको याद होगा। एवरीबडी विल रिमेंबर।
Now Feb or March में जब markets were in mayhem, okay, and markets were crashing like anything, and especially certain sectors, the hospitality sector, the travel and tourism sector, जो पूरी तरह से क्रैश हो गया था, एविएशन सेक्टर, ये पूरा का पूरा सेक्टर्स तो क्रैश हो रहा था उस समय। ना यहाँ पे थोड़ा सा योगिक प्रिंसिपल बोल रहा हूं, क्या स्पिरिचुअल, क्या वहां पे कोई पर्सन, जब देर इज अ मेहम गोइंग ऑन, व्हेन देर इज अ हेवॉक गोइंग ऑन, और कोई पर्सन दूर से देखेगा क्या चल रहा है, इफ समबडी लुक्स एट व्हाट इज हैपनिंग एंड ही कैन होल्ड हिज नर्व्स, इन दैट केस ही विल रियलाइज दैट उस chaos में nobody is able to differentiate between good quality and bad quality। अगर एविएशन स्टॉक्स गिर रहे हैं तो सारे के सारे गिर रहे हैं बुरी तरह से, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स गिर रहे हैं तो सारे के सारे गिर रहे हैं बुरी तरह से। उसमें वो डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा है कि वो एक लेमन ट्री है या वो आईएचसीएल है, वो एक ईआईएच है या वो महिंद्रा रिसोर्ट्स है। दैट इज नॉट बीइंग सीन, एवरीबडी इज जस्ट बैटर्ड लाइक एनीथिंग। ओके, बीट ऑल द मल्टीप्लेक्सेस, बीट ऑल द एविएशन स्टॉक्स, बीट ऑल द हॉस्पिटैलिटी, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है कि क्राइसिस के टाइम पे जब हुआ था कोविड, तो उस केस में एवरीथिंग वाज बैटर्ड, दीज सेक्टर्स विच वेर द वर्स्ट हिट, ठीक है, विच वर द वर्स्ट हिट सेक्टर्स, एंड वहां पे डिफरेंशिएशन चला गया था, डिफरेंशिएशन वाज नॉट देयर। ऐसे सिचुएशन में स्टॉलवर्ड्स like Warren Buffett, stalwarts like the late Mr. Rakesh Jhunjhunwala, they are the ones who really have their antennas up at such time. They know that abhi to opportunity hai, ठीक है, तो they don't jump onto the opportunity. They are very patient at that time, but they hold their nerves, and good thing is that they have the gunpowder. Gunpowder भी उनके पास रहता है। तो I'm just imagining that Feb या March 2020 में, suppose in the family office of Rare Enterprises, Rakesh Jhunjhunwala, if there was an offer coming from an investment bank कि there is a certain block deal और एक certain stake है IHCL का जो ऑन ऑफर है, जो कि अच्छे दाम पे मिलने का स्कोप है, ठीक है, हाउ वुड ही थिंक अबाउट इट? Now, the way he would think about it is that you must be knowing that he already had investment in Titan, which ये stories तो चलती रहती है कि क्या Titan में he earned, and from the same staple we have IHCL. तो number one Tata backing वो जानते हैं, and he knows that it's a very crisis period going on for IHCL. Okay, so the first thing is that he remembers the Tata brand. He understands the Tata legacy. He knows their governance culture. He knows their resilience. He knows their power of being able to pass through multiple crisis opportunities, और वो सारे के सारे क्राइसिस से वो उभर के विक्टोरियस बनते हैं। देयर वर टाइम्स व्हेन टाटा मोटर्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क थे, बिकॉज दे हैड गॉन इनटू एक्सेसिव लेवरेज, ओके, व्हाई द एक्विजिशन ऑफ लैंड रोवर एंड जैगुआर। ठीक है, देयर वाज टाइम व्हेन द सेम थिंग वाज अबाउट टाटा स्टील, when it acquired Chorus, it became heavily leveraged, but they have come out of it. It has happened. You know, Tata Group has always shown a lot of resilience. And when it comes to Taj, it's like 120 years का heritage. 120 साल का, माने the recognition of Tatas is through the Taj. Believe me. Okay, माने when we talk about Taj, Tata, Tata, Taj, that's the thing. So that type of patronage is what IHCL enjoys. ठीक है, so the entire group support is there. It is market number one when it comes to the organized hotel industry in India. Organized hotel industry में number one है in terms of capacity, the number of rooms that it has. It has, so that's the first feeling it will come to a veteran investor. He will then also find that the price has fallen to record low levels, maybe around more than 50% price गिर गया है. Okay, from the peaks, the price has fallen to more than 50% levels. He would now think about what will happen to COVID. ये किसी को नहीं पता, believe me. ज्ञान देना बाद में बहुत easy है, अभी ये तो पता ही था कोविड खत्म हो जाएगा, बहुत easy है. But standing at that juncture, nobody is intelligent enough to understand क्या होगा. There is only one thing that one can look at past data. तो मैं तो बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं किया हूँ पैंडेमिक्स का, बट मेरे को जो थोड़ा बहुत याद आता है, जो मेरे मैंने बड़े होने के बाद हुआ था, एक तो सार्स था, सार्स अर्ली 2000 में, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ईयर्स, तो सार्स था और वो शायद 1.5-2 साल में खत्म हो गया था। और वैसे ही देयर वाज सम H1N1 करके स्पाइन फ्लू हुआ था करीब 2009-10 में, और वो जो 2009-10 में जो H1N1 हुआ था, दैट ऑल्सो वेंट अवे in around 1 year time or 1.5 years time. So when those pandemics
came. Okay, of course, they were localized at that time because so much travel was not happening. COVID became so much big because the entire economy had become very mobile. Okay, so when those pandemics lasted for a certain duration, 6 महीना 9 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल, so in that case that would suggest from historical data, okay, that this too shall pass. Okay, so I'm not saying with guarantee, but the feeling that this too shall pass will come, that yes, some of the other vaccines will be discovered. ऐसा मानना पॉसिबल था. आई एम नॉट सेइंग ऐसा मानना 100% लॉजिकल था. ठीक है. तो नंबर टू, अगर इसमें लग जाते 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल लग जाते कोविड में सपोज, क्या उस समय तक लोगों का हैबिट ऑफ गोइंग टू होटल्स चला जाएगा? क्या पूरा का पूरा बिजनेस कम्युनिटी अब से केवल गूगल, ओके, बड़े गूगल मीट पे और जूम पे काम करेगा? क्या पूरा का पूरा जो लोग हैं वो लोग अब से ट्रैवल बंद कर देंगे? ठीक है. क्या शादियां होटल्स में होनी बंद हो जाएगी? तो in that case a person like him would never feel that that's going to happen, because the one thing that he understood very well was that human beings are social animals. No matter what happens, we will want to meet people. Okay, and that cannot be killed. Yes, business travels can be curtailed. बिजनेस ट्रैवल्स जहां रिक्वायर्ड है वहीं होंगे, दैट इज पॉसिबल. बट नॉन बिजनेस ट्रैवल्स वाला पार्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन और समबडी टू से दैट सब जन अपने अपने घर में रहेंगे और सब कुछ होना बंद हो जाएगा. तो स्टुपिडिटी का बात करके फायदा नहीं है. तो यस, बिजनेस ट्रैवल्स के बारे में देयर वुड बी एन इम्पैक्ट. हाउ मच इम्पैक्ट वी डोंट नो. बट नॉन बिजनेस ट्रैवल्स जो है ना, लेजर वाला, ओके, उसके बारे में ये सोचना गलत होगा. So that's the way in which he's applying his common sense, is what I'm thinking. Of course, his common sense is exponential times higher than what I can imagine. Okay. So number one, he thinks about the Taj brand, and अभी तक कोई numbers नहीं आए हैं. I have not talked about a single number. I think the only number I spoke about was that Taj number one है. ठीक है. In terms of the organized hospitality sector in India. And the second thing that I spoke about was that 50% से ऊपर stock crash हो गया है. And the stock is treated like a lemon tree. द स्टॉक इज ट्रीटेड लाइक अ लेमन ट्री, बिलीव मी. लेमन ट्री जिसका कोई बैकिंग नहीं है, लेमन ट्री जिसका कोई ऐसा लेगेसी नहीं है, जिसका ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, एंड द स्टॉक इज ट्रीटेड बाय द मार्केट्स लाइक अ लेमन ट्री. ओके. Now, Rakesh ji, the fact that he was an ultra HNI client, ultra square HNI client, would also be visiting properties. And those who belong to that category, they know that ताज का कितना प्रीमियर प्रॉपर्टीज है जोधपुर में, जयपुर में. ठीक है. उमेद भवन हो गया, इन सबको कौन नहीं जानता है. लेक पैलेस उदयपुर में. तो इन दैट केस ये सब जगह जो ताज का प्रीमियर प्रॉपर्टीज है, मुंबई का, दीज प्रॉपर्टीज आर लोकेटेड इन सच स्ट्रैटेजिक लोकेशंस कि वहां पे एक दूसरा प्रॉपर्टी वैसा ही बन ही नहीं सकता है, बिकॉज वो जगह ही नहीं है. द स्पेस इज नॉट देयर, द प्लेस इज नॉट देयर. सो दे आर प्रीमियम प्रॉपर्टीज विच आर वैल्यूड लाइक, मतलब एक चीज का वैल्यू क्या बोले अगर उसका रिप्लेसेबिलिटी नहीं है. यू अंडरस्टैंडिंग. तो ही नोज दैट ताज इज सिटिंग विद सच प्रॉपर्टीज. एंड although in 2017-18 it was highly criticized that the Indian hospitality sector has really not learned from abroad क्या हो रहा था abroad? All the hotel business का business model change हो रहा था from owned business to managed business, where REITs were holding hotels. Okay, REITs were owning hotels and the management of the hotels was given to the likes of Marriott. Understood? So it has moved to the managed property segment कि भाई Marriott will not own properties. Marriott will manage property and earn a royalty equal to say 8%, 10%, 5%, 15%, whatever. So that was the business model going on abroad. कैपिटल राइट मॉडल चालू हो गया था. बट इंडिया में 2017-18 में जाके एहसास हुआ कि यस, यहां पे भी मैनेज प्रॉपर्टी का मॉडल होना चाहिए. और अदरवाइज ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज सो बिग. इनफैक्ट इफ यू रिलेट अदर इंडस्ट्रीज, एविएशन सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, होटल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, इन तीनों इंडस्ट्रीज में ROCE पैथेटिक होता है. क्यों? बिकॉज इन तीनों इंडस्ट्री में कैपिटल एम्प्लॉयड इज सो हाई that the numerator cannot manage the return on capital employed. And if that cannot manage, you can't earn a ROCE greater than KC. You have a positive economic value added and you have a negative economic value added, and therefore it results in shareholders wealth destruction. अगर आपका return on capital employed cost of capital से कम है तो. So therefore these hospitality sector in India, the likes of ITC, the likes of Indian hotels, and they all learned that हम लोग को भी managed property में जाना है. But ये लोग देर से सीखे.
And this turned out to be a blessing in disguise because when we were sitting in 2020, around 60% of Taj ka property was owned, 40% was managed. 60% of Taj ka property was owned, 40% was managed. You understanding? तो जो ओन्ड प्रॉपर्टीज था उसमें तो एक वैल्यू ऑफ द एसेट है ना, रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट है। तो कुछ भी हो जाए, अगर मान भी ले यार होटल इंडस्ट्री अगर बंद रहेगा तब भी तो यार मेरे पास लैंड है, मेरे पास बिल्डिंग है, ठीक है, उसमें लोग आके नहीं रहेंगे, बट दैट लैंड बिल्डिंग इज वैल्यूएबल। सो ही लुक्स एट दैट साइड ऑल्सो। सो the figures that I would roughly say is that करीब 8,000 रूम्स ताज का ओन्ड था, ओन्ड रूम्स 8,000 रूम्स, और ऑन एन एवरेज एक रूम को कंस्ट्रक्ट करने में 1.5 करोड़। ओके, 1.5 से 2 करोड़। तो 8,000 इंटू 1.5 से 2 करोड़ करेंगे तो क्या आएगा आपका, करीब आएगा 16,000। कैन वी गो टू दैट शीट वेयर द रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेशन हैज बीन डन? लेट मी शो द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। रिप्लेसमेंट कॉस्ट एनालिसिस ठीक से देखिएगा। ना यू मस्ट बी नोइंग दैट ताज जो है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है, आईएचसीएल डाइवर्सिफाई कर रखा है इनटू द अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट, इनटू द मीडियम सेगमेंट, इनटू द लोअर सेगमेंट। और सारे रूम क्वालिटी सेम नहीं होते। तो इफ यू लुक एट इट, प्लीज डोंट शिफ्ट इट, इफ यू लुक एट इट, यहां पे यू हैव रूम्स। ताज में 2837 रूम्स, विवांता में 1686 रूम्स, पीएम होटल्स में 1076 रूम्स, बनारस होटल्स में 174 रूम्स, यूनाइटेड होटल्स 88 रूम्स, यूएस ऑपरेशंस 299 रूम्स, यूके ऑपरेशंस 423 रूम्स। दिख रहा है आपको? ये रूम्स दिए हुए हैं। और कई सारे में इसमें सेमी ओन्ड है, जैसे बनारस होटल्स में 54% इज ओन्ड बाय आईएचसीएल, 46% बाय समबडी एल्स। पीएम होटल्स में 52% इज ओन्ड बाय ताज एंड 48% समबडी एल्स। तो मैंने वो लिख दिया है आईएचसीएल का स्टेक उसमें। व्हाट विल बी द एस्टिमेट ऑफ द कैपेक्स पर रूम इन टर्म्स ऑफ रुपीज मिलियन? जिनको मिलियन पसंद नहीं है वो करोड़ में देख लो। तो ताज वाले रूम्स का 1.5 करोड़ दाम लगेगा पर रूम, विवांता वाले रूम का 0.75 करोड़, बिकॉज उसका लेवल नीचे होता है। ओके, पीएम होटल्स का 1 करोड़, बनारस होटल्स का 1 करोड़, यूनाइटेड होटल्स का 0.75, यूएस ऑपरेशंस में 3 करोड़। ये सब रूपी टर्म्स में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंगली सबको मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाइड बाय केपेक्स पर रूम मल्टीप्लाइड बाय द आईएचसीएल का स्टेक, इट कम्स इन द लास्ट कॉलम। ठीक है, इन सब का सोर्स दिया हुआ है कि दिस इज द इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन कॉस्ट्स। ओके, सारे का सोर्स दिया हुआ है, डोंट वरी, आई कांट स्ट्रेस ऑन ईच एंड एवरी कॉलम ओवर हियर। तो इफ वी जस्ट गो डाउन टू द नेक्स्ट पेज, इसमें जिंजर, जिंजर भी सुना होगा आपने, जो लो एंड है ताज का, जिंजर, इंटरनेशनल एसोसिएट्स, डोमेस्टिक एसोसिएट्स। तो वो टोटल आया 10,471 करोड़। प्लीज ध्यान देना, 10,471 करोड़ इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द रूम्स। फ्री होल लैंड का बुक वैल्यू लिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन इफ यू फील आई एम शाउटिंग, लेट मी शाउट। फ्री होल्ड लैंड का बुक वैल्यू लिया हुआ है 265 करोड़। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है लैंड का वैल्यू कहां से कहां भाग जाता है, कितने सारे लोग क्या हो गए एज अ रिजल्ट ऑफ लैंड का वैल्यू, दैट्स अ टॉक फॉर अनदर डे। ओके, मेनी अ टाइम्स इट वुड बी 100 टाइम्स इफ नॉट 10 टाइम्स। सी रॉक लैंड का 1200 करोड़ वैल्यू है। ओके, एंड टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज 11,936 करोड़, 12,000 मान लेते हैं, 12,000 करोड़। ओके, तो वो जो फ्री होल्ड लैंड का FY20 के बैलेंस शीट से लिए, तो बैलेंस शीट तो अवेलेबल था ही, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट 265 करोड़, और 1,200 करोड़ सी रॉक लैंड का मार्केट वैल्यू एस्टिमेट, तो 12,000 करोड़ आया, 12,000 करोड़। प्लीज अंडरस्टैंड, 12,000 करोड़, आई वुड नॉट लाइक टू कॉल इट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मैं इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं बोलना चाहूंगा। क्यों? बिकॉज फ्री होल्ड लैंड जो है वो बुक वैल्यू पे लिया गया है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब आज वैसा लैंड लेके वैसा प्रॉपर्टी बनाएंगे तो क्या कॉस्ट लगेगा, और वो लैंड आपको मिलेगा ही नहीं। और वो लैंड का अप्रूवल, जोनल लॉस को पारित करना, सारा रेगुलेशंस निभाना, सारा कॉस्ट ओवररन्स, टाइम ओवररन्स, कोई हालत में ये 12,000 करोड़ नहीं है। दिस इज कम से कम 20,000 करोड़ बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। बहुत ही कंजर्वेटिव है। आई वोंट से इसमें लैंड वैल्यू काउंट हुआ, बिलीव मी, मेरा मन ही नहीं हो रहा है। मेरा मन है हो रहा है बोलने का दिस इज एक्सक्लूडिंग लैंड, 12,000 करोड़। तो अगर इसको 20,000 करोड़ माने तो 20,000 करोड़ तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ओके,
और अगर उस पे आप लिक्विडिटी डिस्काउंट लगाएंगे, सर डिस्ट्रेस में मान लेते हैं सर कोविड खत्म नहीं हुआ, मान लेते हैं सर कोविड खत्म हो गया बट लोगों का हैबिट चेंज हो गया, अब लोग होटल्स को नहीं यूज कर रहे हैं और ताज को अपना प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, तो इन दैट केस ताज डिस्ट्रेस में बेचेगा, सपोज उसका लिक्विडेशन हो रहा है, मान लेते हैं टाटा सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो इन दैट केस भी कितना डिस्काउंट लगेगा, 30, 40, 50, 60%। डिस्ट्रेस में कितना डिस्काउंट लग जाएगा, 30%। आप जीपीटी से चेक कीजिएगा कि वेन hotel properties are sold under distress, what is the range of liquidity discount? When hotel properties are sold under distress, what is the range of liquidity discount? ये आप चेक कीजिएगा, you will get some range from GPD, 30, 40, 50%, let's take 50, 60% भी, तो भी तो यार 8, 10 हजार करोड़ तो इक्विटी के पास आता ही है ना। आप समझ रहे हो, मेरा मन नहीं ले रहा वैसे, मेरा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग 60% डिस्काउंट, मेरा मन बोलता है 40% डिस्काउंट। तो 12 हजार करोड़ जो है, 12 हजार करोड़ तो डेफिनेटली मिलेगा, उस पे से डेट हटा देंगे, डेट करीब 2 हजार करोड़ था, तो भी तो 10 हजार करोड़, अगर 12 हजार करोड़ आता है तो उसमें से अगर डेट हटा दे 2 हजार करोड़, तो इन दैट केस 10 हजार करोड़ तो इक्विटी का वैल्यू है ही। कौन कौन से सिचुएशन में, जहां लोगों का हैबिट खराब हो गया, होटल बिजनेस को भूल जाओ, केवल प्रॉपर्टी को देके, तो 10 हजार करोड़ है ही। अंडरस्टूड, 10,000 करोड़ इज द मोस्ट वर्स्ट कंजर्वेटिव फिगर इफ आई फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट द होटल बिजनेस इज देयर, 10,000 करोड़। ओके, नाउ लेट मी शो यू कि इन लोग का एंटरप्राइज वैल्यू ये सब क्या था वो दिखाते। चैप्टर 11 में चल जाओ, इजी पड़ेगा। चैप्टर 11 में, चैप्टर 11 में जा रहे हैं, लास्ट चैप्टर, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस समरी, उस पर दिख जाएगा। नीचे आ जाओ, नीचे नीचे नीचे, और नीचे, और नीचे, या स्टॉप ओवर हियर, हैव अ लुक प्लीज। मई 2020 में इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये अज्यूम कर रहे हैं मई 2020 में, बिकॉज फेब मार्च में प्रपोजल आया होगा और उसको इवेल्युएट करते करते सोचते सोचते मई 2020 में इन्वेस्टमेंट हुआ है। उस समय द मार्केट कैप, एंड आई स्पोक इन माय संडे का सेशन दैट रिटेल इन्वेस्टर्स टॉक अबाउट द शेयर प्राइस, institutional lingo is talking about the market cap, and if you don't understand the difference in the two lingo, the difference in the two lingo is the difference between a clerical job versus a hi-fi job. ठीक है, what language do you use is very important. Market cap was 8,500 करोड़, net debt 1900 करोड़, मैंने 2,000 करोड़ बोला था, that's fine. एंट्री एंटरप्राइज वैल्यू 10,400 करोड़, स्टॉप, 10,400 करोड़ वॉज द एंट्री एंटरप्राइज वैल्यू, और अभी हमने निकाला उसका सारा का सारा वर्स्ट टू वर्स्ट लिक्विडेशन सब लेके 10,000 करोड़ तो कम से कम रियलाइज होगा ही शेयर होल्डर्स को। तो 10,400 करोड़ मैंने 8,500, 10,000, मैंने बोलना चाह रहा हूं राकेश जी को स्ट्रेट अवे दिखा होगा कि इस सौदे में भाई नुकसान तो नहीं है। मैंने यहां वो होता है, क्या होता है, देयर इज अ प्रोवर्ब ना, हेड्स आई विन बिग, टेल्स आई डोंट लूज, हेड्स आई विन टेल्स आई डोंट लूज, वैसा वाला आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, जहां पे अगर गड़बड़ हो गया तो लूज करने को कुछ नहीं है, और अगर बढ़िया हो गया तो स्काई इज द लिमिट। दिस इज कॉल्ड असिमेट्रिक पे ऑफ, एंड दिस असिमेट्रिक पे ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट इन एनी फाइनेंशियल मार्केट अंडर नॉन क्राइसिस टाइम्स। Asymmetric payoff does not exist in any market under non crisis times, पर क्राइसिस के टाइम पे आपको ऐसा मौका मिल सकता है जहां पे डाउनसाइड कुछ नहीं है। ओके, डाउनसाइड इज पेग्ड, अपसाइड इज अनकैप्ड, तो डाउनसाइड लिमिटेड है, पेग्ड है, और अपसाइड कैप्ड है। आप कॉल ऑप्शन याद कर रहे होंगे, दैट द एबिलिटी ऑफ great investors or great equity analysts to pick up stocks which provide asymmetric payoff, downside limited, upside unlimited, is the hallmark of a great investment analyst. Believe me, you may think that you are not Rakesh Jhunjhunwala, you don't have the gunpowder, but you will be working for some family office, you will be working for some mutual fund, you'll be working from some PMS, some AIF, some private equity fund, some private credit fund, and the same type of analysis will be required कि ये डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग का सिचुएशन है, इसको डेट देना है प्राइवेट क्रेडिट, ये डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग का सिचुएशन है, एक्ट लाइक अ वल्चर एंड फाइंड आउट विच इज द अपॉर्चुनिटी वेयर विच प्रोवाइड्स असिमेट्रिक पे ऑफ। तो यहां पे मैंने डाउन साइड का बात कर लिया कि सर
होटल बिजनेस को भूल जाइए, उसका क्या केपीआईज है। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है कि इसको बेचना पड़ेगा अपना, तो बेचना पड़ेगा तो क्या रियलाइज होगा, भाव भाव मिल जाएगा मोटा मोटी। So downside I can't see in this deal. So that would have been really impressive. You know what must have happened is that Rakesh ji has a very small team of analysts, and he would come to them and he will tell them that yeah, give me a 4 pager on this IHCL. Okay, so when he say give me a 4 pager, you can't produce big financial models over there. With all the three statement modeling that you talk about, things don't happen that way. He's a person, he doesn't have time. You have to produce him non-noise substance. When you tell him that, sir, इस चीज में नुकसान होने का ज्यादा नहीं है. Okay, he is ears. एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग देयर इज एन अपसाइड स्टोरी बिकॉज कौन बोला कि कोविड दूर नहीं होगा 1.5 साल 2 साल 3 साल में? कौन बोला कि वापस से लेजर ट्रेवल पेंट अप डिमांड चालू नहीं होगा? कौन बोला कि बिजनेस हाइब्रिड नहीं होगा? ठीक है, इनफैक्ट उस सारे चक्कर में जो कोविड होगा और जो डिस्ट्रेस होगा, उसमें जो छोटे छोटे सब जन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, जो अपना अपना माने प्रॉपर्टीज चला रहा होगा अपने नाम से, इज्जत से गांव में चला रहा होगा, कहां चला रहा होगा, वो लोग सब के सब निकल जाएंगे. देयर विल बी कंसोलिडेशन इन द इंडस्ट्री. ओके, ताज उनका प्रॉपर्टीज में डील कर पाएगा कि आप ही ओन कीजिए, हमें मैनेज करने दीजिए. ओके, वन ऑफ आवर faculties in analyst tech, okay, who is working in a family office, Buddhaditya, and they have a very significant holding in Sandur. ओके, संदूर में होल्डिंग है, एंड वो लोग उसके प्लांट विजिट में गए थे. ठीक है, एंड प्लांट विजिट जहां किए थे तो उनको ठहराया था ताज प्रॉपर्टी में. तो ही आउट ऑफ इंक्यूजिटिवनेस आस्क्ड देम, दिस ताज प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय होम? तो इट वाज नॉट ओन्ड बाय ताज, इट वाज ओन्ड बाय द ओके संदूर, एंड they had given Taj to manage the property. Okay, that's the royalty business. Okay, which is a capital light business. So I mean to say ये सारा चीज तो होना था ना. तो you never know the upside कि सर पेंट अप डिमांड चालू हो जाए और ज्यादा क्वालिटी लोग चाहें, पीपल एंड ऑल द कंसोलिडेशन हैपेंस इन द इंडस्ट्री इज वेरी अनऑर्गेनाइज, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाए. ओके, तो उस केस में ताज जैसे प्लेयर कितने जोर से गेन करेंगे, वो तो सारा का सारा अपसाइड है ना. देयर इज नो लिमिट टू व्हाट अपसाइड कैन बी. So that's the type of thing that comes into the picture. Now, having said that, uh, let me also show you कि अल्टीमेटली क्या हुआ. 1 मिनट बिफोर लुक एट द स्क्रीन प्लीज, स्क्रीन और वापस देख लीजिए. 8,500 करोड़ मार्केट कैप था और उस समय दाम करीब 71 था. 71 जो अपने मान रहे हैं एंट्री प्राइस 71 रुपीज पे शेयर बाई किए. 8,500 करोड़ मार्केट कैप है. एंटरप्राइज वैल्यू 10,400 है. एबिडा 968. ईवी टू एबिडा रेशियो 10.7 टाइम्स. ठीक है ना, 10.7 टाइम्स. अब एक बार देखते हैं एग्जिट के टाइम पे क्या हुआ. लेट्स गो डाउन. एग्जिट के टाइम पे, तो एग्जिट के टाइम पे, एग्जिट मान लिया है मैंने दिसंबर 24 में, सपोज हाइपोथेटिकली दिसंबर 24, मई 20 से दिसंबर 24, इट्स लाइक 4 इयर्स, व्हाट 7-8 मंथ्स. मई 20 से दिसंबर 24, 4 इयर्स 7-8 मंथ्स. और शेयर का दाम 750 रुपया, 750. शेयर का दाम 750 रुपया, 99,000 करोड़ इज द मार्केट कैप. नेट डेट के बदले नेट कैश. हैव अ लुक. जब एंटर किए थे उस समय नेट डेट था, दिखाओ एक बार ऊपर वापस. जब एंटर किए थे तो नेट डेट था कितना, 1900 करोड़. डेट माइनस कैश 1900 करोड़. और जब एग्जिट किए, द कंपनी हैज बिकम लाइक मोटा भाई. ओके, जीरो डेट कंपनी, नेट कैश 2,000-3,000 करोड़ नेट कैश है. तो इस समय एंटरप्राइज वैल्यू इज 99,000 करोड़ माइनस 2,000, 97,000, 96,000 करोड़. दैट इज द एग्जिट एंटरप्राइज वैल्यू. उस समय एबिडा was 2,200 to 2,400 crore depending upon the exact time when we will have to see the figures, and the exit EV to EBITDA multiple is 40 to 43 times. थोड़ा सा फिगर्स पे टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में. आई एम वांटिंग दैट डाइजेशन टू हैपन. कैन वी ओपन एन एक्सेल शीट, a fresh Excel sheet? I hope you are able to watch see the sheet. Okay, so let us write down the entry date. Entry date, it is May 2020. अब ये चीज क्या है, लिखा हुआ भी है वहां पे, पर क्या है मेरे को पता है कि अभी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा अगर मैं स्लो डाउन नहीं करूं तो. May 2020 इज द एंट्री डेट. और ये जो एंट्री डेट May 2020 उस पर शेयर प्राइस 70 लिख लेते हैं. 70.
नंबर ऑफ शेयर्स 119 करोड़ था क्या? कैन वी चेक? हाँ, बिलियन है ना, 1.19 बिलियन, तो विच इज 119 करोड़, फाइन। 119 करोड़ शेयर्स, ठीक है। मार्केट कैप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कॉमा फुल स्टॉप का बात हो रहा नहीं है यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करने का। ठीक है, अब टेक द नेट डेट 1900 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू ऐड करके 10,230 करोड़। चेक द एबिडा, चेक द एबिडा, ऊपर ऊपर, या एबिडा 968, 968 करोड़। नेक्स्ट, ईवी टू एबिडा रेशियो, ईवी टू एबिडा रेशियो 10,230 बाई 968, 10.5, 6 टाइम्स। ठीक है, ओके, थोड़ा स्क्वीज कर दो, शीट को एक साथ दिख जाए। ओके, नाउ एग्जिट पे लिखते हैं, एग्जिट December 24, डेट लिख दो ना, वो समझ जाएंगे। एंट्री एग्जिट December 24, December 24, exit price was like 770, number of shares 132। ये लोग का बीच में राइट से इश्यू और क्यूआईपी हुआ था, आई टॉक अबाउट इट, टाइम मिला तो। नेट डेट वाज नेट कैश, व्हाट वाज द नेट कैश, लेट्स चेक। नेट कैश वाज 2,500 मान लो, नहीं नेट कैश ऊपर 2,500, 2,000 to 3,000 लिखा हुआ है, तो 2,500 मान लेते हैं, 2,500। सो व्हाट इज द ईवी, माइनस होगा मार्केट कैप में से नेट कैश, हाँ वो तब ठीक है, नेट डेट को माइनस लिख दिए, दैट्स फाइन। तो 99,140 एबिडा, लेट्स चेक द एबिडा 2250, 2,300, 2,300 लिख दो, 2,300, व्हाट्स द रेशियो? ओके, सो ये मैंने थोड़ा सा स्लो डाउन किया है जिससे आपके पास फिगर्स रहे, एक बार इससे दोस्ती कीजिए ना। पहले रिटेल लैंग्वेज में आते हैं, रिटेल पीपल जो समझेंगे कि सर 70 का शेयर था, 770 का बन गया, तो आपने क्या अर्न किए? ठीक है, 70 का शेयर था, 770 का बन गया, जिनके पास कैलकुलेटर वो लोग निकाल सकते हैं कि क्या आपने अर्न किए। ठीक है, 70 से 770 इन 4.6 ईयर्स। ओके, 70 से 770 इन 4.6 ईयर, 4.7 ईयर्स, वॉट एवर करो। 770 बाई 70, 770 डिवाइड बाई 70, द होल टू द पावर 1/4.7, the whole to the power 1/4.7, the whole thing minus 1, the whole into 100। ऑफ कोर्स ये एक्सेल कमांड से भी कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज आई नो द पार्टिसिपेंट्स दे विल लाइक इट दिस वे, into 100। ओके, दिस इज द per annum return 67%, per annum return 67% is the per annum return earned in the stock, 67%। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये रिटर्न कैसे अर्न किए, तो प्लीज एक्नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज सुनना। सर ये रिटर्न अर्न किए बिकॉज कंपनी का जो एबिडा 968 करोड़ था वो 2,300 करोड़ हो गया। प्लीज शो दो फिगर्स। वन सोर्स ऑफ रिटर्न इज 968 बिकम 2,300 करोड़। व्हाट कैन वी कॉल इट? वी कैन कॉल इट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। वो जो 968 से 2,300 हो गया, दैट इज द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। सेकेंड है री रेटिंग, सेकेंड है री रेटिंग। जो री रेटिंग है स्टॉक का, वो 10.56 टाइम्स से 43.1 टाइम्स हो गया, 10.56 टाइम्स से 43.1 टाइम्स हो गया। ओके, और तीसरा, और एक चीज निकालना है, पीछे जाना, या और एक कॉलम बनाना, और एक कॉलम बगल में, ईवी एबिडा के बाद, ईवी एबिडा के बाद और एक कॉलम बनेगा,
ईवी एबिडा के बाद और एक कॉलम, द कॉलम इज इक्विटी ओनरशिप। इक्विटी ओनरशिप, इक्विटी ओनरशिप मतलब एंटरप्राइज वैल्यू में इक्विटी का स्टेक क्या था, एंटरप्राइज वैल्यू में इक्विटी ओनरशिप क्या था। लेट्स कैलकुलेट दैट। तो दैट इज द मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू। मार्केट कैप डिवाइडेड बाय एंटरप्राइज वैल्यू। किसा 10,230 में से इक्विटी का 8,330 था, सो इट वाज अराउंड 81%। और बाद में कितना हो गया, बाद में इट्स मोर देन 100% बिकॉज नेट कैश था ना। ओके, इसका इंप्लीकेशन बहुत जन समझ नहीं पाएंगे, दम हो तो समझना, सुनना प्लीज, सुनो प्लीज सब जन, प्लीज सब जन सुनिएगा। आपने एक एसेट बाय किया, जब आपने एसेट बाय किया उस समय आपने डेट यूज किया उसको बाय करने में, यूज्ड लेवरेज, करेक्ट। सो यू डिड नॉट ओन द एंटायर एसेट, यू यूज्ड लेवरेज। वो एसेट अप्रिशिएट हो गया दो रीजन से। नंबर वन, उसका इनकम बढ़ गया एबिडा। नंबर टू, उसका मल्टीपल बढ़ गया, 10 टाइम्स के बजाय 43 टाइम्स, द मल्टीपल गॉट री रेटेड। ठीक है, 10 टाइम्स के बजाय 43 टाइम्स मल्टीपल बढ़ गया। एंड आप जब उसको बेच रहे हो ना इतना हाई वैल्यू पे, उस समय डेट है नहीं, आप डेट चुका चुके हो। तो यानी कि व्हेन यू आर एंजॉइंग द अपसाइड दैट टाइम यू आर द 100% ओनर, बट यू व्हेन यू एंटर्ड दैट टाइम यू आर द 81% ओनर। प्लीज फील इट। एक घर खरीदा तुमने, उस घर को फिर तुमने भाड़े वड़े पे लगाया, पर जब घर खरीदा तो बैंक लोन से लेके खरीदा, समझ गए, और उसको भाड़े पे लगा और भाड़ा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया, तो बहुत ऊपर दाम पे तुम घर बेच रहे हो, और जब घर बेच रहे हो तो डेट नहीं है उस समय, देर इज नो डेट। तो वो इंजॉयमेंट तुम अकेला कर रहे हो। तो देर आर थ्री सोर्सेज ऑफ वैल्यू क्रिएशन। नंबर वन, अर्निंग्स वेंट अप, एबिडा वेंट अप। ठीक है, मतलब पक्का होटल का ऑक्यूपेंसी बढ़ गया होगा सर। जो कोविड में होटल का ऑक्यूपेंसी तो एकदम डोल्ड्रम में चला हो गया होगा, इन 4 साल में होटल का ऑक्यूपेंसी बढ़ गया। रूम का रेट बढ़ गया होगा, जो रूम का रेट है ताज जो चार्ज करता था वो बढ़ गया होगा। ठीक है, तो रूम का रेट जो बढ़ गया होगा, एवरेज रूम रेट मस्ट हैव गॉन अप, होटल का ऑक्यूपेंसी लेवल मस्ट हैव गॉन अप। वो रूम का रेट जो होता है एआरआर, एवरेज रूम रेट मल्टीप्लाइड बाय ऑक्यूपेंसी, दैट्स कॉल्ड रेवपार, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। हर इंडस्ट्री में देर आर सर्टेन केपीआईज एंड दैट पीपल नो। हर इंडस्ट्री में देर आर सर्टेन केपीआईज विच हैव टू बी ट्रैक्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केपीआई विच इज ट्रैक्ड इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज रेवपार, revenue per available room, revenue per available room. And how is it calculated? The average room rate multiplied by the occupancy rate, average room rate multiplied by the occupancy rate. The average room rate in the, say if you go to Taj Bangalore, if you go to Taj Mumbai, the average room rate is around 18 to 20,000, 18-20 हजार रुपया एवरेज रूम रेट होता है। एंड ऑक्यूपेंसी रेट अगर 70% है, ऑक्यूपेंसी रेट अगर 70% है, तो 20,000 इंटू 70%, 14,000 रेफ पार। इट्स ब्यूटिफुल, कांट एक्सप्लेन टू यू। अगर एवरेज रूम रेट 20,000 है और ऑक्यूपेंसी लेवल 70% है, तो 70% ऑफ 20,000 है 14,000। मैं कई बार फिगर्स को राउंड ऑफ करके बोल रहा हूं, 18 बोलता तो दिक्कत होता बोलने में, तो 20,000 इंटू 70%, 14,000, दैट्स रेफ पार। That's a very important metric that is tracked. So if you're understanding COVID के टाइम पे में 20 पे, sir, the average room rate must have gone to pathetic levels. Occupancy का तो बात ही करें, रेप पार must have fallen, तो रेप पार उठ गया पूरे तरह से। उसके अलावा होटल सेल्स फूड एंड बेवरेजेस, वो बिजनेस भी होता है उनका, फूड एंड बेवरेज वाला रेवेन्यू, अदर रेवेन्यूज भी है उनमें, वो सबसे रेवेन्यू मॉडलिंग बोलता है उनका, रेवेन्यू मॉडलिंग, ओके, द मॉडलिंग ऑफ रेवेन्यू विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जाके कॉस्ट का। और मैनेज होटल्स में आपको परसेंटेज मिलेगा, 10 या 15% ऑफ द एबिडा इज व्हाट यू विल, और 10 या 15% ऑफ द रेवेन्यू, सॉरी, 5 या 10% ऑफ द रेवेन्यू इज व्हाट यू विल अर्न। 5 या 10% ऑफ द रेवेन्यू इज व्हाट ताज विल अर्न। कॉस्ट से मतलब नहीं है, 5 या 10% रेवेन्यू, बट कोई पैसा नहीं लगाना है, तो कैपिटल एफिशिएंसी इज देयर। ओन्ड वाले में पैसा लगा हुआ है, एंड एट द सेम टाइम दिस इज कमिंग टू यू। सो आई कम टू दैट ऑल्सो लिटिल बिट लेटर। तो मैं बोला चाह रहा हूं वो एबिडा जो बढ़ा, वो क्यों बढ़ा? बिकॉज आप रेवेन्यू बढ़ा पाए। ठीक है, आप रेवेन्यू क्यों बढ़ा पाए? बिकॉज आप एवरेज रूम रेट बढ़ा पाए, आप ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ा पाए। क्यों बढ़ा पाए? बिकॉज आपने ताज का ब्रांड को इंटैक्ट किया और इंप्रूव किया, बिकॉज आपने लेगेसी के ऊपर प्ले किया, बिकॉज आपने कंसोलिडेट किया, बिकॉज कोविड के बाद पेंटअप डिमांड हो गया, बिकॉज कोविड के बाद ताज बिकेम अ डिफरेंशिएटर इवन मोर एज कंपेयर टू प्रायर टू कोविड। अंडरस्टूड? सो ऑल दिस हैपेंड। आपने कॉस्ट कंट्रोल किया, आपने ओटीएस से बुक करने के बजाय डायरेक्ट बुकिंग चालू किया। तो दे डिड अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टू अकम्प्लिश दिस, दे डिड अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टू अकम्प्लिश दिस। दैट इज द रीजन देयर एबिडा वेंट अप from 968 crore to
2300 crore. तो 968 से 2300 crore is like 2.5 times EBITDA. May not seem very high. सर क्या ग्रेट है? ओके 968 से ये तो 2.5 times. Understood? So it is seeming to be not great. However, the greatness lies in the re-rating. When you get growth with sustainability, with solid brand, with less risk, that's a recipe of high multiple. You are getting growth with less risk, with strong brand, okay, with sustainability. Anybody is ready to pay. So the rating, the P multi, the EV to EBITDA multiple went up from 10 times to over 40 times. 10 times to over 40 times. That is the main source of value creation. Okay, this has to be understood that ultimately price is a certain multiple multiplied by the earnings, and earning is a certain margin multiplied by revenue. So ultimately what matters is the revenue ka growth, the margins and the multiple. Revenue ka growth, margins and multiple. You may go into all the DCF in the world, 4 साल का 5 साल का 10 साल का and all that, but believe me, what matters when actual investment takes place is revenue का growth, margins and multiples. Revenue का growth, margins and multiples. And one more thing you can add over there, one more thing which matters is investment efficiency, कि अपने को इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ रहा है. ओके, जहां पे वो कैपिटल एफिशिएंसी वाला पॉइंट आ जाता है. तो रेवेन्यू का ग्रोथ, मार्जिन्स, कैपिटल एफिशिएंसी एंड मल्टीपल्स, पर मल्टीपल्स अदरवाइज वो कैप्चर कर लेगा. सो एनीवेज, मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो एक तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, दूसरा री रेटिंग है, और तीसरा लेवरेज इफेक्ट है, डी लेवरेज इफेक्ट. एक्चुअली डी लेवरेज इफेक्ट क्या हो गया कि हम लोग जब घुसे थे तो 81% ओनर थे, और जब निकले उस समय प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो गया था, और उस समय हम लोग 103% ओनर है. वुड यू लाइक टू स्प्लिट दैट? लेट्स स्प्लिट दैट, बट बिफोर दैट वी कम टू द एक्सेल वंस अगेन. यस, इट इज विजिबल. थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग. एक बार लेफ्ट में आना, लेफ्ट में. तो हमने 67% CAGR निकाला था. प्लीज राइट डाउन CAGR. वैसे वो जरा सा मिस्टेक है, उसमें मैं बताऊंगा क्यों. आई टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. एक साथ 50 चीज बताने से नथिंग विल बी गॉन इनटू योर हेड. नेक्स्ट है MOIC निकालो. MOIC नाम तो सुना होगा, मल्टीपल ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल. 770/70. MOIC 770/70. So what is the institutional lingo? It was a 10x bagger. It was a 10 times bagger. बोलते हैं ना मल्टी बैगर, कि 10 गुना वाला स्टॉक. ओके, तो इट्स 11x. MOIC was 11 times. ठीक है. so as to show you what happened over here. And overall return जो है वो अगर निकाले तो without doing the power 1/7 equal to 11 minus 1 the whole into 100. 1000% आएगा. The whole into 100, 1000%. Okay, the total return, the holding period return, and this return is not the total return. not total मत लिखो, because dividend yield नहीं है इसमें. It's the price return. The price return excluding the dividend. Okay, the price return excluding the dividend, that is 1000%. Of course फिगर्स मोटा मोटी चल रहा है, मैंने एग्जैक्ट फिगर्स नहीं लिए. देखो बार बार डॉक्यूमेंट में लिखा है, आप फिगर्स खुद चेक कर सकते हैं ना. एक बार लॉग रिटर्न निकालते हैं. कंटिन्यूअस रिटर्न, कंटिन्यूअस रिटर्न, राइट डाउन कंटिन्यूअस रिटर्न. कंटिन्यूअस रिटर्न क्यों कर रहा हूं बताऊंगा. तो इट्स LN 770/70. LN 770/70, which is 239.240%. Continuous return is 240%. For people who are not understanding, 240% compounded continuously is equal to 1000% effective. 240% compounded continuously is equal to 1000% effective. सर ये कंटिन्यूअस क्यों निकाल रहे हैं? बिकॉज कंटिन्यूअस रिटर्न एडिटिव होता है, उसको स्प्लिट कर सकते हैं, उसके लिए फैक्टर इनटू फैक्टर नहीं चाहिए. Now, why did I do continuous return? Let me come to the right side. I said there are three reasons, there are three drivers which resulted in this performance. One is the operating performance. So let's calculate LN 2300/968 into 100. 2300/968 into 100. ओके, तो सर वो जो रिटर्न आया आपका लेफ्ट साइड में, वो जो रिटर्न आया आपका लेफ्ट साइड में, क्या रिटर्न आया था? 1000%. वो जो 1000% रिटर्न है उसमें 87% इज ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस. इज ऑन अकाउंट ऑफ ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस. नेक्स्ट, री रेटिंग. री रेटिंग इज LN जो 43.1045 मल्टीप्लायर है, डिवाइड बाय 10.56818, द होल थिंग इनटू 100. तो 141%.
Okay, 141% is the continuous return through the re-rating. And let's calculate the leverage का effect. Leverage या deleverage लिख दो, deleverage. Deleverage effect. That's ln 103 divided by 81. 103 divided by 81 into 100, yeah, percentage. It comes to 24%. What's the total? 251%. What was the continuous return? 240%. ऑफ कोर्स थोड़ा डिस्क्रिपेंसी मैंने बोल दिया था, मैं फिगर्स को पूरा संभाल के नहीं करवा रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं बैलेंस शीट को मैच करने नहीं बैठा हूं. आई एम गिविंग यू द थॉट प्रोसेस. जो कॉमा फुल स्टॉप में जाएगा वो कुछ भी पिकअप नहीं कर पाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट द रिटर्न विच वाज जनरेटेड, उसका तीन लीवर्स है. नंबर वन, द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ IHCL. दैट मीन्स द इंप्रूवमेंट इन द एबिडा. एबिडा कैसे इंक्रीज किया, और वो डिपेंड करता है ARR पे, ऑक्यूपेंसी रेट पे, रेव पार पे, ठीक है. तो all the cost reduction initiatives that were taken, the branding that took place, the marketing, okay, avoiding the OTAs and so on. उसके अलावा then there is a re-rating. re-rating कब होता है? re-rating इन्वेस्टर को चाहिए, काश एक हाई ग्रोथ कंपनी मिले जो कि सस्टेनेबल हो, जिसका ब्रांड हो, जिसपे रिस्क कम हो, जिसमें लेवरेज कम हो. बाप रे बाप, इफ यू टेल सम इन्वेस्टर दैट यू आर गेटिंग अ कंपनी विद अ वेरी हाई ग्रोथ, ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, ओके, विद एन एसेट बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड विद सस्टेनेबिलिटी, ओके, एंड विथ, मैंने क्या क्या बोला, आई फॉरगॉट, ठीक है, विद अ ग्रेट लेगेसी एंड एवरीथिंग, द इन्वेस्टर इज रेडी टू पे अ मल्टीपल फॉर द सेम. अंडरस्टूड? So that's the segregation. Now somebody will say my CA students or my CFA students or FRM students कि सर इस तरह से जो आप ब्रेक किए ना, EV EBITDA का, वैसे EBITDA का, फिर मल्टीपल का ब्रेक, फिर डीलेवरेज का, ये तो कभी सिखाया नहीं CA CFA में. Now that is the limitation of academic certification. एकेडमिक सर्टिफिकेशन में वैसे बताया ही नहीं जा रहा है जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रहा है. एकेडमिक सर्टिफिकेशन में आपको चेप चेप के केवल DCF 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 कराया जाएगा. एंड बिलीव मी, ऑन द ग्राउंड जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग कमा रहे हैं, वो लोग DCF बहुत लिमिटेड यूज कर रहे हैं. वो लोग रिवर्स DCF यूज कर रहे हैं और आपका सारा तेल DCF में कर देगा, टेबल प्लस फॉर्मूला. CA वाले तो और बर्बाद होंगे बिकॉज उनको कॉपी में लिख लिख के करना पड़ेगा. CFA वाले कम से कम वो CF का कैश फ्लो का मोड है. तो आपका जो एनर्जी है वो लुटा देता है ये लोग. ये 6711 निकालने में ही आपको, और आप खुश हो जाते हैं, देख हम निकाल लिए, आई गॉट 99. So that has become the yardstick, and the investment expertise is not communicated at all. Understood? And I am using numbers over here. Why? Because numbers के थ्रू होते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं कि किसी इंसान को खाने का शौक है तो उसको खाना अच्छा खिला दो, फिर आपके उसके दिल में पहुंच पाओगे. तो मेरे को पता है कि आप लोग को नंबर्स का शौक है. आपको नंबर्स के थ्रू लॉजिक बोले तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आता है. आई नो इट इन एंड आउट. तो आई डेंट स्पीक अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, क्या थीसिस है क्या नहीं है, आई डेंट स्पीक अबाउट इट. पहले मैंने एक बार रियलिटी दिखाया क्या हुआ IHCL का, व्हाट हैपेंड इन IHCL एंड व्हाई इट हैपेंड. ओके, बट व्हाई इट हैपेंड का मैंने रैशनल इकोनॉमिक रीजन नहीं दिया, मैंने ज्यादातर रीजन फाइनेंशियल रीजन दिया है. दिस इज फाइनेंशियल डेटा. वी हैव टू गो टू द बिजनेस लॉजिक ऑफ इट. Okay, the business logic is what matters, and you have to anyhow imagine a person of great financial acumen and business acumen and human acumen like late Rakesh Jhunjhunwala ji to understand what was going in his mind when he was doing this. This was not going in his mind, believe me. ये एकदम भी नहीं चल रहा था उनके माइंड में, ठीक है. ये कैलकुलेशन लॉग, he will not like it at all. But this is like the new generation people who are equipped with all the analytical skills, you know, they will think that way कि अब से इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली सोचेंगे इस तरीके से. So this must have been definitely a new way of thinking कि कैसे अपने सोचते वैल्यू क्रिएशन होता है. EV to EBITDA मल्टीपल का री रेटिंग, EBITDA का ग्रोथ, और उसके अलावा डी लेवरेज का इफेक्ट, ठीक है. इट्स जस्ट थॉट दैट यू शुड रन इन योर माइंड दैट सर ने क्या बोला था इसके बारे में. बट लेट मी नाउ कम टू द मेन मीट ऑफ द डिस्कशन. द मेन मीट ऑफ द डिस्कशन लाइज इन मी शोइंग यू द मेन IHCL का केस स्टडी. लेट्स गो टू चैप्टर 1 प्लीज. लेट्स गो टू चैप्टर 1 प्लीज. उसके पहले 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ. या एक बार मैं उस पे देखो, Q&A टैब पे जाते हैं, Q&A टैब पे, एंड लेट मी सी हाउस द जोश. Q&A टैब पे हाउस द जोश. Q&A टैब तो भर गया है, बाप रे बाप. Q&A टैब पे हाउस द जोश. सब बोल रहे हैं हाई सर. तो Q&A टैब नहीं हो गया. Q&A टैब तो अपना चैट वाला मोड हो गया.
या इट्स रियलाइज्ड रिटर्न उदय। तो कैसे करूं, इंसान ही तो हूं, तो धीरे धीरे तो आगे बढ़ूंगा। ठीक है। इट इज रियलाइज्ड रिटर्न उदय। आई नो इट। इट्स रियलाइज्ड रिटर्न, मैंने चालू किया था हाइंडसाइट बायस से। ठीक है, चलिए। सो लेट अस गो बैक। सुना प्लीज। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में देर आर 5 स्टेप्स। फर्स्ट, फाइंड। सेकंड, एनालाइज। थर्ड, डिसाइड। फोर्थ, साइज। फिफ्थ, होल्ड। फाइंड, खोजो। एनालाइज, खोदो। डिसाइड, वैल्यूएशन करो। साइज, कितना परसेंटेज लगाओगे। होल्ड, एग्जिट डिसिप्लिन। रन इनटू योर माइंड। मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पे, पर पहले आपके माइंड में आ जाए। खोजो, खोदो, वैल्यू करो। और ज्यादातर वैल्यूएशन रिलेटिव वैल्यूएशन पे करना रियल लाइफ में। डीसीएफ कम। ठीक है, अपने प्रोग्राम में तो बहुत जोर से डीसीएफ होगा। मतलब ऐसा डीसीएफ कोई कराता नहीं है। वैसा वाला लेवल का डीसीएफ होगा, एंड रिवर्स डीसीएफ। एंड अभी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई आ गया है, और जब क्लॉड ने सारा फीचर्स ला दिया है, तो इन दैट केस ऑल दोस पीपल हु जंप ऑन एक्सेल ना, क्या मेरे को एक्सेल आता है, वी विल जस्ट टेक आउट दैट एक्सेल फ्रॉम देम। एक्सेल भी सिखाएंगे वैसे, बिकॉज रिक्वायरमेंट सब कुछ का है, बट देन दैट इज नॉट योर लाइफ। द रीजन आई से अबाउट इट। ठीक है। तो इन दैट केस फाइंड, एनालाइज, डिसीजन। डिसीजन मतलब वैल्यूएशन। Size, sizing, position sizing. Okay. How much percentage would you put in the stock? Hold, the hold discipline. कब एग्जिट करना है? एग्जिट करना तो बहुत ही बड़ा बात है, बाप रे बाप। हाउ डू आई से, अगर आपने इन्वेस्ट किया 70 पे, और अगर आप बीच में निकल जाते 150 पे, डबल हो गया देख यार। 230 पे निकल जाते, 330 पे निकल जाते, 470 पे निकल जाते, 550 पे निकल जाते, यू वुड पैट योर बैक। 70 का 550 पे बेचा है। तो द पॉइंट इज, कब निकलते, बाद में ज्ञान देना इजी है कि सर वो तो बढ़ता गया, तो आप ज्ञान दे रहे हैं कि दिसंबर 24 पे निकलना चाहिए था। ठीक है। तो आई एम तो एक्चुअली आई डोंट हैव द डेटा, बट आई एम ट्राइंग टू एज मच एज नो दैट व्हाट राकेश जी डिड। ओके, उसके अंदर मैंने, दैट हैज बिकम माय बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज गोइंग थ्रू दैट पर्सन्स माइंड इन अ रैशनल मैनर, एंड वन हु डज नॉट यूज टू मच ऑफ नंबर्स बिकॉज ही डज नॉट। ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश। ठीक है। एंड आई होप यू नो दैट राकेश जी has been, okay, over the years, a bigger compounder than Warren Buffett. ठीक है। तो जो अपने बाहर का कसम खाते रहते हैं ना, मेरे को वॉरेन बफेट का जैसा बनना है, तो आई थिंक आप भगवान से गलत विश मांग लोगे। एनीवेज, कमिंग टू इट। तो फाइंड, फिर एनालाइज, फिर डिसाइड। डिसाइड मीन्स वैल्यूएशन, फिर साइज कितना परसेंटेज, और उसके बाद होल्ड, द होल्ड डिसिप्लिन। ये 5 स्टेप्स होता है। दीज आर द 5 स्टेप्स। लेट्स गो टू चैप्टर 1 एंड शो इट टू यू। कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का यही पांचों है। दीज आर द 5। वी आर गोइंग टू चैप्टर 1, वी शुड गो टू द फर्स्ट दिस थिंग, एंड देन, या चैप्टर 1 में फ्रेमवर्क पे चल जाओ सीधा। चैप्टर 2 में है शायद, या द 5 स्टेप फ्रेमवर्क। चैप्टर 1 वॉज मोर ऑफ एन इंट्रोडक्शन, व्हाट आर वी डिस्कसिंग एंड ऑल दैट। द 5 स्टेप इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क। बिकॉज जब वर्ड्स बोलते हैं ना, तो वर्ड्स डाइजेस्ट होने में भारी लग जाते हैं, देखो कभी कभी उनका विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है। डोंट हैव टू ट्राई टू रीड सो मच कि क्या लिखा हुआ है इन छोटे अक्षरों में। दैट्स नॉट द वे इन विच मैंने पॉश पीपल थिंक। आप उसमें वर्ड्स जो ऊपर लिखा हुआ उससे फीलिंग लो। फाइंड, खोजना है। एनालाइज, उसको डिग करना है डीप, जिसका बात करते हैं उसी में तो सब कुछ है। डिसाइड, उसका वैल्यूएशन करना है, एंड आई लाइक रिलेटिव वैल्यूएशन प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ। साइज, कितना परसेंटेज लगाना है। अगर राकेश जी को लगा कि यार क्या अपॉर्चुनिटी है, इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, would he bet 30-40% in that stock? He would never do that, because the one who does 30-40% in a stock, he's not humble. I remember during the entire COVID period, Ashwath Damodaran ji का जो वीडियोस आता था, प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन, he used to teach only one thing, humbleness. That if you are not humble, if you are arrogant, you can bet the entire house, but don't do that, because you don't know the other side क्या हो जाए, क्या पता कोविड हमेशा लास्ट करता, अभी ज्ञान देने में लग रहा है क्या है। तो साइजिंग हैज टू बी curtailed. Personally,
We do not invest more than 10% and do not recommend investment of more than 10% in a single stock. More than 25 to 30% in a particular sector, वही बहुत हाई है. 10 or 25, 30 जो बोल रहे हैं वो एक्सट्रीम बोल रहे हैं. Never go to that. Okay, it's better to keep half of that, 5% maximum in a stock. Okay, and perhaps you keep 12 and a half, 13, 14%. And this could vary. There could be some other person who would say that no, I go to 15% in a stock. Okay, I'm saying my personal belief. So accordingly, position sizing is very important, and that's a symbol of humbleness. And hold तो is marvelously important to discuss, because वहीं पे सारा दिक्कत है कि जिस शेयर को बेच देते हैं उसके बाद वो बढ़ जाता है, और जिस शेयर को नहीं बेचते ये सोच के कि वो बढ़ जाएगा, वो शेयर बाद में गिर जाता है. मैंने घर घर की कहानी है कि नहीं? जो शेयर बाई किए थे फिर उसको बेच देते हैं तो बाद में वो बढ़ जाता है, और जो शेयर अपने बेच दिए, सॉरी नहीं बेचे, पता नहीं बोल नहीं पा रहा हूं, नहीं बेचे ये सोच के कि नहीं नहीं वो तो आईएचसीएल बनेगा, वो शेयर बाद में गिर जाता है और सोचते काश बेच देते. ठीक है. एवरीथिंग दिस गोज ऑन एंड देयरफॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जिट, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड. इनफैक्ट एक पूरा सेशन है जो मैं उन्हें उस दिन सेशंस दिखा रहा था आपको, उसमें एक पूरा सेशन डिवोटेड है टू द सेल डिसिप्लिन. एक सेशन है पूरा सेल डिसिप्लिन के ऊपर. तो मैं तो यहां थोड़ा बता पाऊंगा, बट अदरवाइज अ कंप्लीट सेशन इज देयर ऑन सेल डिसिप्लिन, एंड दैट इज नॉट थियरी, दैट इज प्रैक्टिकल विद केस स्टडी. सेल डिसिप्लिन समझ गए? इसके ऊपर सेशन रखा है हमने सेल डिसिप्लिन के ऊपर, बिकॉज वी बिलीव दैट इसी के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स कमा नहीं पा रहे हैं. ठीक है, इसका फिलॉसफी क्या होना चाहिए. तो आई थिंक ये स्टेप्स आपके घुस गए होंगे, काफी टाइम स्पेंड कर दिया है ना. ये स्टेप्स के अलावा मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड द सेम, HHT, the HHT framework. बाई चांस कोई सुना है तो, इफ यू वांट टू डू जीपीटी, HHT framework. The first H is a hunch. The second H is hypothesis. And the third H is thesis. Hunch, hypothesis and thesis. तीनों वर्ड्स को सोचो, प्लीज थिंक अबाउट इट. हंच मतलब यू फील दैट समथिंग विल हैपन. मेरे को लग रहा है यार कि जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है ना इंडिया में, या जो फिनटेक नए नए इमर्जेंट है, वो लोग बहुत ही बढ़िया से गेम जीत जाएंगे. इन्फोसिस से, TCS से ये लोग गेम जीत जाएंगे, एंड दे विल एक्चुअली ग्रैब द AI का जो हो रहा है वगैरह वगैरह. यू फील दैट, ये आपका हंच है. उसके बाद होता है हाइपोथेसिस. देन यू collect some data, you dig deep and you analyze and you see as to ये आपका हंच करेक्ट था क्या विद डेटा. ठीक है. और थीसिस में आपने डीप एनालिसिस किया, एंड देन यू कैन कम टू द कंक्लूजन दैट यस 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 ये सही है, ये गलत है. तो इट्स HHT. हंच इज जस्ट अ फीलिंग, इंट्यूशन. हाइपोथेसिस इज अ प्राइमा फेशियल स्टडी, एंड थीसिस इज द डिटेल्ड स्टडी, बिकॉज हाइपोथेसिस में ही तो थीसिस वर्ड है ना. आई डोंट नो इफ यू एवर थॉट अबाउट इट. एनीवेज, सो ये 5 स्टेप्स है. एंड नाउ लेट मी शो यू द चैप्टर्स द वे दे आर. हैव अ लुक प्लीज. तो ये है जो 11 चैप्टर्स अपने बोल रहे थे. इसमें चैप्टर 3 इज फाइंड. चैप्टर 3 इज फाइंड, आइडिया जनरेशन, नाम से पता चल रहा होगा. मेंटल मॉडल्स एंड स्क्रीनिंग. चैप्टर 4, 5, 6, 7 इज एनालाइज. It takes 50% of an analyst effort. 50%. Analyze. 4, 5, 6, 7. Chapter 8 is decision, valuation. To decide, you have to see that the price is less than the intrinsic value significantly. Chapter 9 is sizing. जो sizing का बात कर रहे थे, and thesis. उसी में thesis डाल दिए. Sizing and thesis. Chapter 10 is the hold discipline. कितना दिन तक होल्ड करेंगे. एंड चैप्टर 11 इज अ वंडरफुल चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. किसी का मन नहीं करे ना अगर रीड करने का, बाई चांस किसी के पास टाइम नहीं हो, कोई बोल रहा था ना वर्क लाइफ बैलेंस. ओके, somebody was saying वर्क लाइफ बैलेंस टू बिगिन विद. तो इन दैट केस चैप्टर 11 रीड कर लेना. अगर आपका मन नहीं करे पूरा रीड करने का तो चैप्टर 11 रीड कर लेना, फिर बीच बीच में आ जाना. चैप्टर 11 इज द बिगेस्ट, इज द नॉट द बिगेस्ट, इट इज द बेस्ट चैप्टर विच गिव्स यू द क्रक्स ऑफ इट. चैप्टर 11 रिजल्ट्स एंड लेसन्स, द फ्रेमवर्क सिंथेसिस. फ्रेमवर्क के लिए अपने बैठे हैं यहाँ पे. IHCL तो गया, वी कांट गो टू मई 2020 एंड बाय द स्टॉक. ठीक है, बट फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज है,
वो अपॉर्चुनिटीज को कैसे ट्रैक करेंगे उसका फ्रेमवर्क है। तो आई थिंक आपको पता चल गया ये पांचों को कैसे कैटेगराइज किया है। 3 इज फाइंड, खोजो। 4 5 6 7 खोदो। 8 वैल्यूएशन यानी डिसीजन लो। 9 कितना लगाओगे एंड थीसिस डिफाइन करो। थीसिस का मतलब क्या होता है जानते हो? जो जो जन थीसिस समझ रहा नहीं है, आई एम सीइंग सम Q&A में, सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड थीसिस। थीसिस का मतलब होता है आप डिफाइन करोगे कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, और अगर वो नहीं हुआ तो थीसिस ब्रेक हो गया, और थीसिस ब्रेक हो गया तो अपने सेल करेंगे। थीसिस इज व्हाट गिव्स यू द सेल का डिसीजन। होल्ड का जो है ना वो थीसिस के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल, सुनना ठीक से, अगर अगर ऑक्यूपेंसी रेट remains less than 50%, if occupancy rate remains less than 50% for 2 years at a stretch, we will sell the stock। मन से बोल रहा हूं। If IHCL loses market share, उसका जो मार्केट शेयर है वो लूज हो जाए by a certain percentage, we will sell the stock। So when you define clearly what are the triggers on which you will sell the stock, in that case, you are prepared beforehand. Just because the stock goes down, you don't sell. Just because the stock goes up, you don't sell. You only decide to sell when your thesis gets broken or your targets are hit, which are defined. And we don't believe in price targets. We don't believe in price targets, believe me. As a fundamental analyst, we don't believe in price targets कि इस दाम पे बेच देंगे। ऑफ कोर्स, जहां जो दाम पहुंचेगा और जहां सोचेंगे बेचना है वहां पे फिर से उसका वैल्यूएशन करेंगे और प्राइस वैल्यू से कंपेयर करेंगे एंड देन देखेंगे थीसिस रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कम टू दैट स्टफ इफ टाइम परमिट्स। ठीक है, बट द थीसिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स विच इज देयर। लेट मी टेक यू टू लेट मी टेक यू टू, हाँ यहां पे सबका टाइम दिया हुआ है। आइडिया जनरेशन में इट शुड टेक 10% ऑफ द टोटल प्रोसेस। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इन द IHCL केस द मार्केट लीडर्स इन क्राइसिस मेंटल मॉडल फ्लैग्ड द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो व्हाट इज द मेंटल मॉडल दैट वी आर स्टडिंग? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सॉरी, मार्केट लीडर्स इन क्राइसिस, that is the mental model we are studying now। what's a mental model? A mental model is a framework that you always apply in a repeated manner। यहां पे मेंटल मॉडल चल रहा है क्राइसिस इन्वेस्टिंग, और क्राइसिस इन्वेस्टिंग में क्या करना चाहिए? जो बेस्ट कंपनीज है which are winners and which are treated like losers mingled with everybody else, वो बेस्ट कंपनीज को आइडेंटिफाई करके बाई करने का फ्रेमवर्क इज कॉल्ड मार्केट लीडर्स इन क्राइसिस। दैट्स द वर्ड, मार्केट लीडर्स इन क्राइसिस। ठीक है, नीचे जो सेकंड है दैट इज द एनालाइज स्टेज। इट विल टेक 50% ऑफ द टोटल प्रोसेस, 50%, जहां पे हम इंडस्ट्री को स्टडी करेंगे, बिजनेस मॉडल को स्टडी करेंगे, सर्वाइवल एनालिसिस करेंगे, ये सब करेंगे। वो हो गया अपना ड्यू डिलिजेंस। ओके, नेक्स्ट वैल्यूएशन वाला पार्ट जो है ना, अलग अलग सिनेरियोस, बुल केस, बेयर केस, बेस केस, वो वैल्यूएशन वाला पार्ट विल एग्जॉस्ट 20% ऑफ आवर टाइम, 20%। साइजिंग इज वेरी इजी। साइजिंग आप फॉर्मूला नहीं भी लगाओ तो चलता है। इनफैक्ट डोंट अप्लाई फॉर्मुलाज, इट डिपेंड्स ऑन योर कन्विक्शन। इफ यू हैव लो कन्विक्शन, put in 1% or 2%, that's also too big। if you have high conviction, put 7 8%। if you have medium conviction, put 3 4%। तो बेसिकली साइजिंग वाला मैंने लिखा है यहाँ पे। सी, यू नो मी वेरी वेल, आई एम ऑल्सो अ वेरी एक्टिव डेरिवेटिव ट्रेडर। मतलब ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो एज अ ट्रेडर देर इज अ क्राइटेरियन कॉल्ड केलीज क्राइटेरियन, जो हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग ट्रेड का पोजिशन साइजिंग, केली। ओके, तो मैंने केली के बारे में लिखा है ऑल दो साइजिंग में, बट फॉर द पर्पस ऑफ स्टॉक्स केली डजंट वर्क। तो मैंने डोंट गो इनटू दैट फॉर्मूला। आई वुड एडवाइज यू जस्ट अंडरस्टैंड लो कन्विक्शन है, मीडियम कन्विक्शन है कि हाई कन्विक्शन है। लो कन्विक्शन है, गो फॉर 1 or 2%। मीडियम कन्विक्शन है, गो फॉर 3 4%। हाई कन्विक्शन है, गो फॉर 7 8%। दैट्स अ वेरी वेरी गुड थंब रूल फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग अपॉन द साइजिंग। And hold discipline is very important। It should take 15% of the total process। Why 15%? Because you have to analyze all the developments। नया इंडस्ट्री में डेवलपमेंट क्या हो रहा है,
कॉर्पोरेट लेवल पे क्या हो रहा है, क्वार्टरली अर्निंग्स क्या हो रहा है, क्या अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बेसिस पे हमारा थीसिस अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है क्या, या थीसिस ब्रेक हो गया है तो सेल कर देना चाहिए क्या, और एवरेज आउट करना चाहिए क्या, बिकॉज थीसिस इज रनिंग एंड द स्टॉक इज स्टिल अंडर वैल्यूड, तो यू बिल्ड ऑन टू द स्टॉक, सो ऑल दैट इज डिसाइडेड इन द होल डिसिप्लिन, ठीक है ना। ओके, दैट वाज वन पार्ट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 में जाते हैं, एक्चुअली उससे ही लोग को बेटर समझ में आएगा। चैप्टर नंबर 11, हाँ चैप्टर 11 में, लेट्स गो टू चैप्टर 11, रिजल्ट्स एंड फ्रेमवर्क, रिजल्ट्स एंड लेसन्स। ना इसमें नीचे आओ, ये सब दिया हुआ आपको पता है, कौन से दाम पे एंटर किए थे, क्या रिटर्न हुआ, ऑल दैट यू नो, आई हैव शोन इट टू यू। हाँ देखो एक बार, जो मैंने वैल्यूएशन किया है चैप्टर नंबर 8 में, उस वैल्यूएशन में आई हैव वैल्यूड द स्टॉक बाय द फॉलोइंग मेथड्स। एक बार एक्सेल में जाना। यस, आई थिंक द स्क्रीन हैज बिकम विजिबल। सो I have valued the stock, if you see above, by the EV EBITDA approach, by the P ratio approach, by the PB ratio approach. ऊपर ऊपर आओ, ऊपर आओ। EV EBITDA approach, P ratio approach and PB ratio approach। मैंने इन तीन मेथड से वैल्यू किया है स्टॉक को। मैंने वेट्स दिया है EV EBITDA अप्रोच को 60%, PB रेशियो अप्रोच को 30%। कैन यू हाईलाइट दैट पार्ट, या 30%, एंड देन P रेशियो अप्रोच को 10%। ओके, EV EBITDA को 60%, एंड क्या बोलते हैं, पीबी रेशियो अप्रोच को 30% एंड 10% वेट टू द पी रेशियो अप्रोच। उसके बाद मैंने ये जो वैल्यूएशन किया है, ये बुल केस, बेयर केस और बेस केस तीनों में किया, आपको दिख रहा है, बुल केस सिनेरियो, बेस केस सिनेरियो और बेयर केस सिनेरियो। और ये वैल्यूएशन मैंने 3 साल के होल्डिंग पीरियड पे किया है, यानी राकेश जी एंटर किए मई 2020, सो आई हैव अज्यूम्ड अ 3 ईयर होल्डिंग पीरियड एंड आई हैव वैल्यूड द स्टॉक। ओके, 3 साल के हिसाब से, 3 साल का एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, और उसके एंड में खड़े होकर वैल्यू करके उसका पीवी करके निकाला है मैंने। ठीक है, बुल केस, बेस केस, बेयर केस। और ये जो, और बुल केस, बेयर केस और बेस केस का प्रोबेबिलिटी भी लिखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? बेस केस का 50% माने, बेयर केस का 30% एंड बुल का ओनली 20। बेस का 50, बेयर का 30 और बुल का 20। ठीक है, और उसके हिसाब से ऊपर जाए एक बार, उसके हिसाब से ट्रायंगुलेट करके, राइट साइड में ट्रायंगुलेट करके मैंने वैल्यूएशन निकाला है 216 रुपया। शेयर का दाम मई 20 में 216 रुपया था। ठीक है, हाईली सब्जेक्टिव, एंड आई एम टेलिंग यू दैट आई डोंट थिंक द लेट राकेश झुंझुनवाला जी वुड हैव डन ऑल दिस। ओके, ही वुड नॉट हैव डन दिस ऑल दिस। ऑफ कोर्स उनकी जो एनालिस्ट टीम है उन्होंने करके दिया होगा, एंड दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू, कि आप कुछ तो बेसिस पे बताओ। ओके, कि आपने किस बेसिस पे क्या किया है। शो the projections that we did in the other sheet. Show the base case. This is the base case का projections which I had made, the so-called financial modeling, you know. Okay, ज्यादा सुंदर नहीं होगा, there are people who can do much beautiful modeling. ठीक है, so this is not that beautiful. इसमें 2020 में एक्चुअल है, 2021, 22, 23 और 24 का मैंने प्रोजेक्शन किया, जिससे मैं लीडिंग मल्टीपल लगा सकूं, लाइक पी रेशियो, लीडिंग पी रेशियो इनटू द ईपीएस और द एबिडा। ठीक है, तो दैट वे, तो आई डिड द 2024 का डेलिबरेटली। सो आई हैव टेकन ओवर हियर कितना रूम काउंट एक्चुअली रिपोर्ट हुआ, 8925 रूम्स था ताज का। आपने सुना होगा कुछ देर पहले, सर आप तो अभी 8000 रूम बोल रहे थे। भाई वो 8000 रूम जो था ना, दोज रूम्स वे, क्या बोलते हैं, ओन्ड रूम्स। और ये जो रूम्स है, ये ओन्ड प्लस मैनेज्ड रूम दोनों है। और वो 8000 में स्टेक लगा के था, जो मैं बोला था कि 52% स्टेक वगैरह। तो 8925 रूम्स, वो रूम्स जो है बेस केस में किस तरह से ग्रो करेगा, तो 21 में कोई गुंजाइश नहीं है ग्रो करने का, बिकॉज कोविड हो रखा है। 22 में 5%, 5%, 5% ग्रोथ माना है। ठीक है, तो एनालिस्ट जजमेंट लिखा है मैंने। ओन्ड रूम्स कितने थे, मैनेज्ड रूम्स कितने थे, वो 2020 के रिपोर्ट्स में है इनके, ओन्ड रूम्स और मैनेज्ड रूम्स। उसका परसेंटेज लिख दिया है, 58%, 42%। ठीक है, परसेंटेज निकाल दिया नीचे। फिर ऑक्यूपेंसी परसेंटेज निकाला है कि ऑक्यूपेंसी परसेंटेज क्या रिपोर्टेड था, ओके, उनके दिस थिंग में। और उसके बाद ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कोविड में जोर से गिर गया 25%।
उसके बाद जाके धीरे धीरे बढ़ेगा। और रिकवर करके मैंने बेस केस में भी आई डिड नॉट टेक इट टू 67%। कैन यू सी? इफ समबडी सेज दैट आपने जानबूझ के स्ट्रेच करके मार दिया था, नो, आई टुक इट ओनली टू 60% बेस केस में। इनफैक्ट बुल केस में दिखाओ मैंने क्या लिया। आई डिड इट सम टाइम अगो, जनवरी में। ठीक है, तो मेरे को भी ध्यान नहीं है ऑब्वियसली। 65% मैंने लिया है बुल केस में भी। तो इट इज बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इज नॉट वेवर्ड। एंड मैं बता दूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज मैंने जोर से बोला है लेसन्स में। एनीबडी हु इज ट्राइंग टू अटैच टू प्रिसिशन विल नॉट बिकम अ गुड इक्विटी इन्वेस्टर। फिर से, एनीबडी जो इक्विटी मार्केट में प्रिसिशन की सर्च करेगा ना, प्रिसिशन, वो अच्छा इक्विटी इन्वेस्टर नहीं बनेगा। थर्ड टाइम बोल रहा हूं, एनीबडी हु ट्राइज टू गो फॉर प्रिसिशन विल नॉट बिकम अ गुड इक्विटी इन्वेस्टर। ही मे बिकम अ गुड बॉन्ड इन्वेस्टर बट नॉट अ गुड इक्विटी इन्वेस्टर। इक्विटी इन्वेस्टर बढ़िया बनने के लिए यू रिक्वायर प्रोसेस, नॉट प्रिसिशन। दैट इज वन ऑफ द लेसन। नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड आईएचसीएल में जो हुआ, किसी का दम नहीं था कोई बोल सकता था आईएचसीएल में ये हाल होगा जो हुआ। इवन राकेश जी ने नहीं सोचा होगा कि इतना हाल हो जाएगा। ओके, नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड कि आईएचसीएल में ये होगा, तो मैं तो बात ही क्या है, आई कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड। इट वाज अ टोटल रॉन्ग वैल्यूएशन यहां हुआ है। अगर मान भी लें मैं 2020 में खड़े होकर किया हूं, तो इट्स अ टोटल रॉन्ग वैल्यूएशन। यू विल नेवर बी एबल टू डू दैट। तो यू कैन ओनली एडहियर टू वन थिंग, योर फ्रेमवर्क एंड योर प्रोसेस। ओके, नथिंग एल्स। उसके बाद मैंने एआरआर लिया, एवरेज रूम रेट रिपोर्टेड था 10,734। ठीक है, उसका सीएजीआर माना है मैंने किस रेट से एआरआर बढ़ेगा। उसके बाद ऑक्यूपेंसी रेट से मल्टीप्लाई किया, 10,734 इंटू 67%, तो रेव पार आया, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ ओन्ड रूम्स, उससे मल्टीप्लाई किया ऊपर से, तो ओन्ड रूम्स का रेवेन्यू आ गया। अदर रेवेन्यू, फूड एंड बेवरेज का रेवेन्यू एस्टिमेट किया। ठीक है, मैनेज्ड रूम का रेवेन्यू, फूड एंड बेवरेज का रेवेन्यू, टोटल मैनेज्ड रूम रेवेन्यू, मैनेजमेंट फी वो लोग चार्ज करते हैं, उस पर तो रेवेन्यू मिलेगा नहीं ना मैनेज में। तो जो 3021 तो आईटी इसको नहीं मिलेगा, एचसीएल को, उसको तो केवल 5 या 10% मिलेगा। तो परसेंटेज लिया मैंने, कितना परसेंटेज, ऑल मेरा अजम्पशंस नीचे दिया हुआ है। मेरा सारा का सारा अजम्पशंस नीचे में दिया हुआ है, ये रहा यहां नीचे में दिया हुआ है सारा का सारा अजम्पशंस। एंड मैं जब बोल रहा था ना कि जूम वालों को एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या जूम वालों के साथ ही एक्सेल शीट भी शेयर होगा? यूट्यूब वालों के साथ एक्सेल शीट शेयर नहीं होगा। ओके, यूट्यूब वाले के साथ आईएचसीएल का 104 पेज का रिपोर्ट शेयर होगा, जूम वाले के साथ एक्सेल शीट भी शेयर होगा। ठीक है, तो एंड ये बता दूं, एक्सेल शीट में काफी सारे फ्लॉ हो सकते हैं, बट अगर आप वो फ्लॉ को ही देखते रह गए ना, वंस अगेन यू आर मिसिंग आउट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ ग्रेट इक्विटी इन्वेस्टर, बिकॉज यू विल गो फॉर प्रिसिशन। ये कोई सीएफए का एग्जाम नहीं चल रहा है, मल्टीपल चॉइस का किसा ऑप्शन नंबर ए बी सी कौन सा नंबर राइट करना है। आपको उस मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। आपको एक्सेल में कम, उसके थॉट प्रोसेस में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये मैं बोल दे रहा हूं, तो मैं बहुत ज्यादा डाउट्स एंटरटेन नहीं करूंगा सर यहां आपसे गलती हो गई, वहां आपसे गलती हो गई ठीक है, तुम सही सुधार ले, हम इक्विटी इन्वेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है ना? तुम बस एक्सेल से अपना एक्सेल शीट बनाओ ना, तुम इस एक्सेल से अपना एक्सेल शीट बनाओ और मेरे को भेजो, rather than saying that आपने यहां मिस्टेक कर दिया वहां मिस्टेक कर दिया। ओके, तो इन दैट केस ये सारे के सारे अजम्पशन है, मैंने 3 बार वैल्यूएशन किया है, बुल केस में, बेस केस में, बेयर केस में। ये सारा जूम वालों के पास जाने वाला है, और वैसे ही एविएशन सेक्टर का, तो जो लोग जूम में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ओके, उनको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब वालों को पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा। तो दैट्स द वैल्यूएशन पार्ट। ओके, दैट इज द वैल्यूएशन पार्ट। लेट्स गो टू चैप्टर 10 प्लीज। तो बेयर केस में हमारा वैल्यूएशन करीबन 113 आया है। ये मत बोलना कि सर एक्सेल शीट में कुछ और आया आपका, यहां पे कुछ और आया है। हो सकता है मैंने जब पीडीएफ कन्वर्ट किया, मैं कुछ टिंकर किया होगा, तो एक्सेल शीट का जो वैल्यूएशन है और ये वाला वैल्यूएशन जरा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। डोंट कैच द कॉलर फॉर दैट, आई विल नॉट बी लिस्टिंग टू दैट। ठीक है, बेस केस पे 240 है, बुल केस पे 350, तो दिस इज द मैक्सिमम दैट आई कुड थॉट आई कैन थिंक सिटिंग इन मे 2020 इफ आई वाज नॉट रनिंग हाइंडसाइड बायस। अंडरस्टूड? कि मैं ऊपर से ऊपर सोचता कि यार 350 का शेयर हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये शेयर तो 750 का हो गया। भाई क्या कर दिया ये शेयर, आई यू अंडरस्टैंडिंग? वो 750 हो गया। इट्स बीटन ऑल एस्टिमेट्स, सो यू कांट एस्टिमेट, आप एस्टिमेट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, नीचे जाते हैं, छवि में दिखा दिए वो चीज, लोगों को डेकोरेशन से अच्छा लगता है ना। एंटी प्राइस 71, बेयर टारगेट 113, बेस टारगेट 240, बुल टारगेट 350, एक्चुअल प्राइस 780, एक्सीडेड ऑल सिनेरियोस। नीचे आते हैं, नीचे नीचे नीचे, ये सब बता दिए, ये सब बता दिया मैंने।
व्हाई दिस मैटर्स, ओके, ये सब, हाँ 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 हाँ। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है आप लोगों से। देखते हैं आपको समझ में आता है क्या। फुल स्क्रीन करो, या फुल स्क्रीन नहीं, मेरे को रफ एक्सेल उसमें जाना है, वो वाले एक्सेल में जो अपने एक्सेल किए थे ना, लॉग एट्रीब्यूशन वाला, वो वाले। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थॉट, लिसन केयरफुली, ये थॉट आपको हेल्प करेगा, सुनना प्लीज ठीक से। एक फ्रेश शीट में चल जाओ, फ्रेश शीट। ओके। और जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्लो डाउन व्हेन आई एम डिस्कसिंग दिस। व्हेन अ फर्म व्हेन अ फर्म is in distress, comma, there is a possibility that it will raise funds at depressed prices. Full stop. This may be interpreted as value destructive dilution. Please read this sentence. When a firm is in distress, पैसे की दरकार है, there is a possibility that it will raise funds at depressed prices. This may be interpreted as value destructive dilution. तो ये खतरा है। जो भी एंटर कर रहा था आईएचसीएल में मई 2020 में, उसको डर था कि अगर ये लोग और खतरे में गए और टाटा ग्रुप पैसा और नहीं डाला, और ये लोग उल्टे पुल्टे भाव पे दूसरे इन्वेस्टर से पैसा रेस किए, तो उस केस में तो यार, इट्स लाइक खतरे के टाइम पे मैं नाव में बैठ गया था, और जब नाव थोड़ा सा संभला है उसके बाद आपने किसी और को बैठा लिया नीचे दाम पे। समझो, एकदम खतरे के टाइम पे नाव पे बैठ गए थे शिप में, और उसके बाद नाव जब थोड़ा संभला है, उस समय आपने किसी और को बैठा लिया कमती दाम पे, तो उससे मेरा तो ओनरशिप स्टेक कम हो गया ना कंपनी में। दिस इज रियली चीटिंग विद माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। एंड इसका एग्जाम्पल कौन सा है बताइए, बताना। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट्स इश्यू, और आई एम टॉकिंग अबाउट, लिखो, आई एम टॉकिंग अबाउट, और एम आई टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर ए, राइट्स इश्यू? Am I talking about option number A, rights issue, or am I talking about QIP, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट? क्या चीज का बात कर रहा हूं, राइट्स इश्यू का या क्यूआईपी का? किसमें ये धोखा होता है, किसमें ये धोखा होता है इन्वेस्टर्स के साथ? यस प्लीज, किसमें ये धोखा होता है इन्वेस्टर्स के साथ? एकदम करेक्ट, ब्यूटीफुल। आई डिड नॉट फील दैट इतना ज्यादा करेक्ट आंसर आएगा। क्यूआईपी में हट जाओ उससे, क्यूआईपी में, बिकॉज राइट्स इश्यू का तो हक सबको मिलता है ना, राइट्स इश्यू का हक सबको मिलता है। और क्यूआईपी में तो बाहर वाले को इनवाइट कर लेते हैं, ओके, बाहर वाले को इनवाइट कर लेते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। तो राइट्स इश्यू नो, क्यूआईपी इज यस। तो आईटीसी, सॉरी आईएचसीएल, क्यों आईटीसी बोल रहा हूं, आईएचसीएल ने नवंबर 21 में राइट्स इशू किया था। राइट्स इशू देखो ना बगल में, नवंबर 21, नो के बगल में, नो के बगल में, हाँ, नवंबर 21, दे रेज 2000 करोड़, देखो 2000 करोड़, ओके, दे रेज्ड, वाई राइट्स इशू, 2000 करोड़ रेज किया था राइट्स इशू से, एट द प्राइस ऑफ 150, 150, 150, मार्केट प्राइस 200। तो वन वुड से दैट सर 200 का दाम 150 पे दे दिया है, तो एकदम क्लियर कट डाइल्यूशन है, नहीं है? बिकॉज आपको भी तो मिला हक। ऑफकोर्स शेयर का दाम गिरेगा 200 से नीचे, बट आपको 150 पे शेयर मिला ना, तो योर वेल्थ इफेक्ट बिकम्स निल। वो पढ़ाने का मेरे पास टाइम नहीं है। सीए में वैसा सम्स आता है, ठीक है, सीएफए में नहीं आता है, सीए में वैसा सम्स आता है जहां पे दिखाते हैं कि देखो राइट से वेल्थ इफेक्ट इज निल। क्यूआईपी में, क्यूआईपी हुआ ये लोग का, ये 21 नवंबर, नवंबर 21 ना, ठीक है, नवंबर 21 था। क्यूआईपी हुआ ये लोग का करीब Jan 22, आई मे बी रॉन्ग, ठीक है, मार्च 22, क्यूआईपी हुआ मार्च 22 में, मार्च 22। और मार्च 22 में जब क्यूआईपी हुआ, उस समय जो, ठीक करोगे नवंबर को, हाँ ठीक है, नवंबर 21, मार्च 22 में क्यूआईपी हुआ, वो भी 2000 करोड़ का। और वो कौन से दाम पे हुआ पता है? 203, 203। और प्राइस क्या था? समवेयर अराउंड 203।
यानी जब बाहर वाले को नाव पे बैठाए तो बाजार के भाव पे बैठाए, और जब राइट्स इशू सबको इशू किए बिकॉज पैसा चाहिए था, तो इन दैट केस वो राइट्स इशू किए. दिस इज द अल्टीमेट brilliance of the Tata Group. They have never had the history of exploiting minority shareholders. They have never had the history of actually exploiting their labor, okay, their employees and all that. वो एक respect है उस group का, ठीक है. So there was no value destructive dilution at all. पर इसका रिस्क था. तो थीसिस का जब बात करेंगे ना, थीसिस में मैंने लिखा है, प्लीज रीड द थीसिस वाला चैप्टर वेरी नाइसली, कि अगर वैल्यू डिस्ट्रक्टिव डायल्यूशन होता है निकल जाएंगे. यानी अगर मई 2020 में एंटर कर रहे हैं और अगर इन्होंने 203 का शेयर 150 पे क्यूआईपी कर दिया तो निकल जाएंगे, एग्जिट. अगर 203 का शेयर 150 पे क्यूआईपी कर दिया, वी विल एग्जिट. बिकॉज कोई फायदा नहीं है ना, भरोसा ही नहीं है. अगर गवर्नेंस फेलियर हो गया, सीईओ रिजाइन कर देता है, अकाउंटिंग फ्रॉड हो गया, निकल जाएंगे. रुकने का प्रश्न ही नहीं उठता है. अंडरस्टूड. अगर अकाउंटिंग इरेगुलरिटी हो गया, सीईओ रिजाइन कर देता है वगैरह, तो अपने निकल जाएंगे. समझ गया. शुरू में जब हमने डिस्कस किया, और एक शीट खोलना, देखो सर्वाइवल एनालिसिस. सर्वाइवल एनालिसिस कोई सोचेगा इस तरह आप शीट खोल के क्यों दिखा रहे हैं. मेरे को पता है, अगर मैं वो पीडीएफ से दिखाऊंगा वो मजा नहीं आएगा, द स्पीड बिकम्स वेरी हाई. सर्वाइवल एनालिसिस में पहली बात तो ये है, टाटा बैकिंग. टाटा बैकिंग. दूसरी बात है लेस लेवरेज. लेस लेवरेज. तो इनका जो लेवरेज था वो करीब 0.37 टाइम्स था. लिख दो बगल में, 0.37 टाइम्स डेट इक्विटी रेशियो, 0.37 डी बाई. उसके अलावा इनका जो कैश एंड क्रेडिट लाइंस था, देखा ना, कैश एंड क्रेडिट लाइंस 2020 में वो कितना था देखना पड़ेगा. एक बार मन से ले लें, एक बार 2000 ले लेते हैं, 2000 करोड़. एंड इनका जो कैश बर्न था, नीचे आओ, कैश बर्न, मंथली कैश बर्न, मंथली कैश बर्न, हाँ, दैट वाज सपोज 60. तो 60 इंटू 20 कितना होता है, 1200. थोड़ा कम करो, कैश एंड कैश क्रेडिट लाइंस से 1200, या डिवाइड द टू नंबर ऑफ मंथ्स. नंबर ऑफ मंथ्स 1200 डिवाइड बाय 60 इक्वल टू व्हाट, 20 मंथ्स. ये रनवे हो गया, रनवे. ओके, ये हो गया रनवे. यानी कि अगर 1200 करोड़ का कैश और क्रेडिट लाइंस था, कमिटेड क्रेडिट लाइंस, और 60 करोड़ का कैश बर्न था मई 2020 में, तो अपने एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर रेवेन्यू जीरो हो जाए, रेवेन्यू जीरो हो जाए और कैश बर्न होते रहे और अपने फंडिंग नहीं उठाएंगे, तो अपना कितना महीना चल सकता है. होता है ना कि कोविड बंद हो गया, राशन घर में पड़ा हुआ है, बाहर से राशन नहीं खरीद सकते हैं, तो कमती कमती खाएंगे, ठीक है, तो उस केस में कितना दिन चला सकते हैं. इट्स सिंपल कॉमन सेंस, जस्ट डेकोरेटेड इन टर्म्स ऑफ दिस. तो 20 मंथ्स का रनवे था, 20 मंथ्स का रनवे था. और ऐसा नहीं कि रेवेन्यू जीरो हो गया था, रेवेन्यू जीरो नहीं हुआ था. ओके, रेवेन्यू इन्होंने अरेंज किया था बिकॉज ताज होटल्स वेर टर्न इनटू कोविड फैसिलिटीज. आई डोंट नो यू आर अवेयर और नॉट. ताज होटल्स वेर टर्न इनटू कोविड फैसिलिटीज. इनफैक्ट दे हैड डन सम प्रोजेक्ट कॉल्ड रीसेट 2020. ओके, जो अपने पता नहीं सीएफए के स्टूडेंट्स हैं तो वो जानते होंगे, क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव सेंट्रल बैंक. और उसमें होता है इफेक्ट, इंडिपेंडेंस, क्रेडिबिलिटी एंड क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी. सो दे कम्युनिकेटेड प्रॉपरली 2020 में कि ये सिचुएशन है और ये सिचुएशन को फेस करने के लिए हम लोग ऐसा करने वाले हैं. ओके, दे वेरी क्लियरली कम्युनिकेटेड एंड दे हैड अ क्रेडिबल गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड. तो विश्वास आदमी कब करता है किसी पे, जैसे मैंने लास्ट संडे को जो सेशन हुआ मैंने बोला, इफ यू बिलीव इन टू थिंग्स ऑफ माई सेल्फ, नंबर वन इंटेग्रिटी, कि धोखा नहीं है, और नंबर टू कॉम्पिटेंस, की यस कैपेबिलिटी है, तो इन दैट केस यू विल नेवर टेक अ सेकंड कॉल अबाउट एनालिस्ट टैग. ओके, दिस एनालिस्ट टैग इज अ सुपर्ब अपॉर्चुनिटी in which I know that career is going to be created. Even if I have to shout 10,000 times, I will shout. And I don't consider money is a problem. I don't think. ठीक है, आप कितना रुपया कहां कहां लाखों चला जाता है फालतू की चीजों में, और यहां पे जो करियर बन रहा है उस पर बनाना नहीं है, वो नहीं चलेगा. तो जैसे मैंने बोला था, और सपोज आपने विश्वास किया, मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि सर आपने जो लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट 5 मिनट्स जो बोला था ना, वो लास्ट 5 मिनट्स की वजह से आई एम टॉकिंग टू यू, पीपल आर सेइंग दिस वे.
तो वही क्रेडिबिलिटी टाटा में है। ठीक है, टाटा बैकिंग छोटा सा वर्ड नहीं है जो दिख रहा है, इट्स अ वेरी वेरी बिग वर्ड ओवर देयर। दे हैव 20 मंथ्स का रनवे, तो सर्वाइवल एनालिसिस में ये सारा कैरी किए। और कोविड खत्म होगा कि नहीं होगा उसके लिए सार्स और N1H1 वो वाला पार्ट हो गया। एंड ह्यूमन बींग्स जो है वो ट्रैवल करेंगे ही, दैट्स द सोशल पार्ट। ठीक है, तो ऑल दीज कंबाइंड टुगेदर, इट इज नॉट स्क्रीनर में कैसे रन किए, स्क्रीनर में क्या डाले थे उस समय, वो सारा दिखाया गया है कि स्क्रीनर में भी सर्च फॉर विच सेक्टर हैज फॉलन बाय मोर देन 40%, विच स्टॉक हैज फॉलन बाय मोर देन 50%, विच स्टॉक इज अ मार्केट लीडर नंबर वन और नंबर टू। ठीक है, तो इन दैट केस स्क्रीनिंग वाज रन, तो स्क्रीनिंग हैज बीन शोन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट आई व्हेन वी टॉक अबाउट फाइंड, फाइंड में तीन चीज आते हैं, लिखो फाइंड में, देखो बगल में फाइंड, राइट साइड में फाइंड। फाइंड के अंदर एक आता है मेंटल फ्रेमवर्क या मेंटल मॉडल। तो मेंटल मॉडल क्या हो गया, लीडर्स इन क्राइसिस, लीडर्स इन क्राइसिस अवेलेबल एट चीप प्राइस, लीडर्स इन क्राइसिस अवेलेबल एट चीप प्राइस। मेंटल मॉडल को बोल्ड कर दो। दूसरा होता है स्क्रीनिंग, यू हैव टू रन स्क्रीनिंग प्रॉपर, आपको स्क्रीनिंग रन करना पड़ेगा। और अब तो एआई क्या हेल्प कर सकता है स्क्रीनिंग में, क्या था जमाना और क्या है। It is not about those screening run करना. It's a different thing. Today afternoon I was discussing with Saurav Kumar. सौरभ कुमार का प्रोफाइल आपको जाके चेक करना चाहिए लिंक्डइन में, प्लीज यू गॉट टू चेक सौरभ कुमार प्रोफाइल। मतलब दिस इज व्हाट वी आर नॉट एक्सपोज टू, दोज हु आर डूइंग सीए सीएफए एंड ऑल दैट, दे नॉट एक्सपोज टू व्हाट दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ। एंड ही वाज टेलिंग मी दैट व्हाट, मैंने ये जो पूरा एआई का स्पेस है ना, ये इवॉल्व हो रहा है। क्लॉड ने हिला दिया, इसके कारण पूरा का पूरा हमने जो डिसाइड किया है हम ऑफर करेंगे एआई में, वो अलग लेवल पे चला गया है। एंड वर्क हैज स्टार्टेड टू इंश्योर दैट वी आर अपडेटेड एंड वी आर एबल टू प्रोवाइड यू दैट कॉन्टेक्स्ट। संडे को वेबिनार उनके साथ, डोंट मिस इट प्लीज। वेबिनार अटेंडीज को ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा एज कंपेयर टू यूट्यूब वालों को, प्लीज बता दिया हूं, ठीक है ना। और वो एक, देखो ह्यूमंस हैं अपने, उस समय जब आपको पता है अभी सर बोल रहे हैं पढ़ा रहे वीडियो नहीं है तो आप बैठे हैं सामने, दैट डज नॉट कम अदरवाइज, द हार्मोन्स एक्ट इन दैट मैनर। ठीक है, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद योर क्या बोलते हैं, गो ऑब्लिक नो गो, गो ऑब्लिक नो गो, कि भाई इफ वी आर गोइंग टू स्पेंड अराउंड 40-50 आवर्स इन डूइंग डीप ड्यू डिलिजेंस, इज इट वर्थ इट। एक ही चीज तो स्केर्स है, टाइम। 40-50 घंटे एक स्टॉक में लगाना या बालना वर्थ इट है कि नहीं है, दैट्स कॉल्ड स्निफिंग। देख तो ले कि यार इसमें सब चीज ठीक है ना, तो उसके अंदर रफली कैलकुलेट करना कि रनवे है क्या, ये लोग का कैश बैलेंस है क्या, ये लोग का डेट ठीक है कि नहीं है, वो सारा का सारा उस पर किया गया है। तो मतलब इट हैज बीन मेटिकुलसली रिटन, यू विल हैव टू रीड थ्रू द इंटायर स्टफ, ओके, मे बी ask GPT to summarize each chapter in short and show it to you in case you don't have the time, बट लेसन नंबर 11 डेफिनेटली रीड कीजिएगा। ठीक है, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 2 दिन 3 दिन, आराम से टेक योर टाइम ना। कौन सा IHCL को बाई करना है अभी, टेक योर टाइम, स्पेंड 1 मंथ। आप सोचो ना मैं 1 महीने में IHCL को क्रैक करूंगा बहुत बढ़िया से, और उसके हेल्प से, उसके अंदर ही होमवर्क भी दिया हुआ है, उसके अंदर होमवर्क भी दिया हुआ है कि आप दूसरे स्टॉक्स को पकड़ के यही एनालिसिस कीजिए। किसी के पास उतना टाइम है तो ऑब्वियसली, अब कोई सीएफए कर रहा है, सीए पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो नहीं करेगा, वो अपने रेडार में रखेगा कि मेरे को समझ में आ गया, जैसे जैसे टाइम मिलेगी मैं वैसे सोचूंगा। अंडरस्टूड। सो आई थिंक इट्स 1 hour 45 minutes ऑलरेडी हो गया, स्टॉप शेयर। 1 hour 45 minutes हो गया that I have been speaking, and as I told you, it would not be possible to take you through each and every line of the document. The effort lies in the document. Articulation was just a articulation so that you can pick it up very nicely. Okay, start from chapter number 11, I'm telling you. Then go back and start further when you start reading. Okay, and people who are sitting for academic examinations, please manage your studies along with this. दोनों को मैनेज करना है, टाइम निकल जाता है, मन होता है ना तो टाइम ऐसे निकलता है, इसका लिमिट नहीं है। मन नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं होता है। टाइम है भी, सुबह से रात तक जो लोग हैं, क्या वो लोग सीएफए पास हो जाते हैं एज कंपेयर टू ऑफिस गोअर्स जो लोग रात को 11 बजे आके पढ़ते हैं। यू अंडरस्टैंड द मैथ्स वेरी वेल। जिसके पास 3-4 घंटा होता है वो भी पास होता है सीएफए, जिसके पास पूरा 12-13 घंटा होता है वो भी पास नहीं होता है। तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग इट। ठीक है, सो होप यू लाइक द सेशन। Q&A टैब पे देखो, क्या कोई यस बोल रहा है कि नो बोल रहा है। आई नेवर आस्क दिस। होप यू लाइक द सेशन। मनीष बोल रहा है REC PFC वेबिनार,
REC PFC वेबिनार नहीं हो पाएगा. There's too much on table. Plus, at the same time, based on SEBI guidelines, it is not good to discuss अभी का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. कहीं ना कहीं वो ज्यादा रिस्क एट स्टेक हो जाता है, कोई सुन के पैसा लगा दे तो. थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द गुड कमेंट्स that are coming. लोग अब उल्टा पुल्टा कमेंट्स भी कर रहे हैं. सर, योर स्पेक्स आर लुकिंग ब्यूटिफुल. ठीक है, एनीवेज चलिए. ओके, सो गुड नाइट ऑल ऑफ यू. थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम ऑफ 1 hour 45 minutes. होप दैट सबसे मेन चीज जो मैंने किया होगा वो आग जलाया होगा. ठीक है, डीप रिसर्च का. ठीक है. सो दिस संडे वी आर मीटिंग फॉर द वेबिनार विच इज ऑन AI एंड फाइनेंस का जो मर्जर है, जो मिंगलिंग है, विद सौरभ कुमार अनपैरेलल्ड. ठीक है ना. ओके, सी यू, बाय बाय.